Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. This is the part 2 of the video on share market, shares, mutual funds, etc. We'll be beginning with this video now. So first of all, we'll be looking at equity instruments. Okay, there can be two types. There's private equity funds and venture capital funds. So venture capital or angel investors क्या होता है? We'll look at that first. Basically I'll just explain it to you here once. इसमें क्या रहेगा? There will be a, for example, this is a startup. ठीक है, now this will be requiring money है ना to scale and for its operations. So it will go to venture capital funds. Venture capital funds will lend this money है ना, the startup money, और वो bonds के form में रहता है usually initially. However, this is convertible into shares later on. ठीक है, and they'll invest in the startup और बस ठीक है. So this is known as venture capital fund. So we'll read this once. तो इसमें क्या दिया? These are professional firms providing seed capital to startups. ठीक है. Next, investments can be in the form of debt, equity or a hybrid, both. ठीक है. Now we'll look at angel investors. Angel investors में क्या रहेगा? These are basically wealthy individuals. For example, Ratan Tata वगैरह है ना. They also invest in startup. However, they do this not, मतलब profit is not the main motivator here, but rather hobby, passion, ये सब. ठीक है, प्रॉफिट मोटिव भी रहता है बट नॉट सो मच. ठीक है. सो फॉर ये वही यहाँ पे वही दिया है. When wealthy individuals investing in startups due to hobby, passion, profit motive, or casual interest. So, an example of this would be Ratan Tata investing in Urban Ladder. Urban Ladder, if you might be knowing, is a furniture portal. So, it is an online platform for buying furniture. Okay, that is an example. Then, investments can be either debt, equity, or a hybrid. Again, okay. So, angel investors are wealthy individuals who are investing in startups. Next है corporate strategic investors. So, these are companies which invest in startups with the intent to acquire the company or its technology in the future. Okay, so this is very important. That is why the name is strategic investors. मतलब they have a strategy in place and their main intention is to acquire the company or its technology sometime in the future. Okay, next we'll be looking at share types. So there are primarily two types of shares. We have preference shares and then we also have ordinary shares. ठीक है, दोनों को देख लेते हैं हम लोग. So preference shares का जो डिविडेंड रेट रहता है, we'll be looking at the difference between the two. So first of all we'll look at the dividend rate of both. So preference rate shares का dividend रहता है, it is generally fixed. ठीक है. And whereas in the case of ordinary share it fluctuates, the dividend rate fluctuates. Dividend क्या होता है? जो कोई भी कंपनी है which has issued some shares, उसका जब प्रॉफिट होता है ना, अगर इस कंपनी का प्रॉफिट हुआ then it will be it will keep some part of the profit for itself, और जो बाकी प्रॉफिट है it will distribute amongst the shareholders. ठीक है. This profit which is distributed amongst shareholders is known as the dividend. ठीक है. तो अगर preference shares हैं then the dividend will be fixed, whereas in the case of ordinary shares the dividend is generally it fluctuates based upon how much profit that company has earned. फिर dividend payment कब रहेगा? In the case of preference shares it happens only if the company makes a profit. Then in the case of ordinary shares it will happen only if there is some profit remaining after paying the preference shareholders. ठीक है. So again this is also important.
if the company makes a profit and if there's something remaining, only then will the ordinary share people get dividends. Okay, then there are certain rights on liquidation. तो सबसे पहले तो जो बॉन्ड, जिन्होंने बॉन्ड्स दिया है या लोन्स दिया, डेट होल्डर्स जो भी रहेंगे, नो, द वंस हु हैव प्रोवाइडेड डेट, they will be the ones who will be receiving the money first of all. लिक्विडेशन कब होता है? व्हेन अ कंपनी इज क्लोजिंग, है ना, तो बेच रहे हैं सब कुछ, देन किसको पैसे सबसे पहले मिलेंगे? तो लोन जिससे लिए उनको, दे विल बी गेटिंग द फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद जो शेयर होल्डर्स होते हैं, दे आर द लास्ट पीपल टू गेट द मनी बैक। ठीक है, एंड दैट टू ओनली इफ देयर इज सम मनी रिमेनिंग, ओनली देन विल दे बी गेटिंग मनी। ठीक है, नाउ व्हेन इट कम्स टू प्रेफरेंस शेयर्स, दे गेट paid before the ordinary shareholders. ठीक है, so this is also important. Next है voting rights. So voting rights में preference shareholders do not have any voting rights, whereas when it comes to ordinary shareholders, they have voting rights in the company's decisions. ठीक है, then convertibility क्या है? It can be converted into ordinary shares. Preference shares can be converted into ordinary shares, whereas ordinary shares cannot be converted into preference shares. ठीक है, तो मतलब कि डिमोट हो सकते हैं, प्रोमोट नहीं हो सकते। ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ प्रमोशन, इफ इट गोज, इट बिकम्स अ प्रेफरेंस शेयर, देन इट इज अ प्रमोशन। ठीक है, सो कैन डिमोट but but no promotion. ठीक है, नेक्स्ट है issuance. So issuance is not mandatory for companies when it comes to preference shares, whereas in the case of ordinary shares, it is mandatory for registered companies. ठीक है, issuance of shares is not mandatory in the case of preference shares and it is mandatory for registered companies. मतलब क्या है इसका? देखो, जो प्रेफरेंस शेयर्स है ना, कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट इशूज अ preference shares, but it compulsorily has to issue ordinary shares if it is a registered company. ठीक है, so this is an important fact कि registered company compulsorily have ordinary shares. ठीक है, have to issue ordinary shares. Then investor risk कितना है? preference shares में कम रहेगा investor risk, because as you can see they will be paid before, where in case of liquidation they will be paid before the ordinary shareholders. Moreover, they will be getting a fixed amount of dividend also regularly. ठीक है, so investor risk is lower in the case of preference shares and it is higher in the case of ordinary shares. ठीक है, we look at example क्या दिया, वही a 10% fixed dividend preference share having 100 rupees face value. This is not important, the example is not important. Next, we'll move to shares for employees or VIPs or special investors. इनको क्या बोलते हैं? ESOPs बोलते हैं या इक्विटी वारंट्स। ठीक है, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान या इक्विटी वारंट्स। ठीक है, सो we'll look at this now. स्वीट या स्वेट इक्विटी क्या होता है? It, it refers to shares which are sold at a discount to directors and employees as a reward for their value addition to the company. ठीक है, and they are primarily governed under the Companies Act. ठीक है, एंड इसी के अंदर आएगा ये ESOPs एंड इक्विटी बॉन्ड्स। ठीक है, ESOP का फुल फॉर्म आई जस्ट राइट इट ओवर हियर, एम्प्लॉई स्टॉक ओनरशिप प्लान होता है, ऑप्शंस नहीं है। यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, and equity warrants are also similar
And sweat equity is an umbrella term which is being used for the two. ठीक है. So equity warrants can, they can be both call and put warrants raise हो सकते हैं. और वही ESOP को ही बोल रहे हैं ये लोग. ठीक है. So next, wait, sweat, yeah, sweat equity. It refers to those shares which are sold at a discount to directors and employees as a reward for their value addition to the company. ठीक है. And उसी के examples are ESOPs and equity warrants. ठीक है. Now you need to remember that this is governed under the Companies Act. ठीक है. Why is it under the Companies Act? Because ठीक है, companies से related है ये. Companies are the ones who are issuing sweat equity. ठीक है. So that is why they are governed under the Companies Act. ठीक है. Next is share types depending upon the risk or quality of the share. So इसमें देखो टाइप्स ऑफ स्टॉक्स देख लेते हैं पहले. So first of all we have something known as penny stocks. Penny stocks refer to stocks of very weak companies with very low market price and which do not provide any dividend as such. Yeah, though very little dividend will be provided. Okay, then we also have blue chip stocks. Blue chip stocks में क्या होगा? Shares of very strong, well-established companies having a consistent history of good returns. Those are known as blue chip stocks. Okay, so these are opposites. If you look at it, they are opposites. है ना? Penny stocks मतलब बहुत weak company and blue chip stock will be a strong, well-established company. ठीक है? Next, there are multi-bagger stocks. Multi-bagger stocks are shares that grow rapidly over time, thus giving a very high return. ठीक है. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को ROI बोलते हैं. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. ठीक है. और these are multi-bagger stocks. Then we have cyclical or seasonal stocks. ये क्या रहेगा? These in this case, the share prices will fluctuate with business cycles. Example, वही क्या हो रहा है इनमें एग्जाम्पल्स? ऑटोमोबाइल स्टॉक्स प्राइसिंग ड्यूरिंग नवरात्रि टू दिवाली शॉपिंग सीजन. ठीक है. तो वही सीजनल स्टॉक में द शेयर प्राइसेस विल बी फ्लक्चुएटिंग अलोंग अकॉर्डिंग टू द बिजनेस साइकिल्स. तो ऑटोमोबाइल स्टॉक्स क्यों राइज होते हैं? वो धनतेरस वगैरह के दिन लॉट ऑफ सेल्स आर मेड. दैट इज वाई ऑटोमोबाइल स्टॉक्स also rise during Navratri, Diwali shopping season. So these are known as cyclical or seasonal stocks. ठीक है. मल्टी बैगर मतलब they will grow rapidly over time and they have very high returns on investment. Penny stocks, weak companies. Blue chip stocks will be for strong companies. ठीक है. Now we will be looking at account types. So first of all, we have personal account, real account and nominal account. ठीक है. तो पर्सनल अकाउंट को देख लेते हैं सबसे पहले. सो पर्सनल अकाउंट इज़ वन वेयर नेचुरल, इट इज़ अ नेचुरल पर्सनस अकाउंट. ठीक है. तो जैसे मार्क जकरबर्ग का अकाउंट रहेगा, है ना. और देर मतलब दीज आर द सब टाइप्स ऑफ दीज अकाउंट्स. तो पर्सनल अकाउंट में देर आर further two subtypes. So the first subtype is natural person account, है ना. and the second subtype is artificial or legal persons account. ठीक है. सो जैसे कंपनी का अकाउंट रहेगा, दैट विल बी एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन्स अकाउंट. ठीक है. तो एन एग्जांपल ऑफ मेटा हैज़ बीन गिवन हियर. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव रियल अकाउंट्स. रियल अकाउंट्स आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स. सो वी हैव tangible real accounts and intangible real accounts. Tangible real accounts में क्या क्या रहेगा? बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, मशीन्स, ये सब. ठीक है. tangible items जो भी which can be touched. और intangible items में क्या रियल अकाउंट्स में रहेगा?
गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब। ठीक है, दीज आर इंटैंजिबल आइटम्स। सो जैसे कॉपीराइट है, पेटेंट है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ऑल ऑफ दीज कैन नॉट बी टच्ड। ठीक है, सो दीज आर इंटैंजिबल आइटम्स एंड इनके लिए एक अलग अकाउंट बना सकते हैं। देन थर्ड थिंग विच वी हैव इज नॉमिनल अकाउंट। सो नॉमिनल अकाउंट आर अगेन ऑफ टू टाइप्स। तो एक रहेगा गेन अकाउंट या इनकम अकाउंट, है ना। द सेकेंड वन विल बी द लॉस और एक्सपेंस अकाउंट। तो एज द नेम सजेस्ट, गेन अकाउंट में क्या रहेगा, द रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स सोल्ड, इनकम अर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, ऑल दोज थिंग्स। ठीक है। और जो लॉस और एक्सपेंस अकाउंट रहेगा उसमें विल बी हैविंग सैलरीज, रेंट, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, ऑल ऑफ दीज विल बी इन एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट है गुडविल वाइल बाइंग अनदर कंपनी और ब्रांड। सो गुडविल का मीनिंग बता रहे हैं यहाँ पे, गुडविल वॉज एन इंटैंजिबल रियल अकाउंट, वी हैड ऑलरेडी सीन इट हियर, है ना। उसी का मीनिंग इज गिवन हियर। सो गुडविल इज एन इंटैंजिबल एसेट फॉर द बायर और द फॉर द बायर कंपनी। ठीक है, तो यहाँ एक बायजूस का एग्जाम्पल दिया हुआ है ऊपर। ठीक है, नाउ वी लुक एट दिस। गुडविल represents the reputation of a company या कस्टमर बेस, ब्रांड और अदर इंटेंजिबल फैक्टर्स। ठीक है, सो एग्जाम्पल पे दिया है उसमें ऐसे है कि एक कंपनी है वाइट हैट करके, वॉज बॉट बाय बायजूस बहुत पहले, है ना। तो क्या हुआ था कि वाइट हैट का वैसे तो प्राइस कितना था, $250 million। ठीक है, however it was acquired at the price of $300 million। so $50 million ज़्यादा क्यों दिया था, it was a goodwill gesture, क्योंकि they were given this much money for the reputation, customer base, brand और other such intangible factors। ठीक है, तो ये this $50 million represented white hat's reputation, customer base, etc. and this is known as the goodwill। ठीक है, so it is something which is beyond the fair market value of that company। ठीक है, या assets उसके। Next we'll be looking at ratios or numbers to compare different companies। so सबसे पहले valuation of companies देख लेते हैं। so meaning क्या होता है valuation का, meaning है it is the total value of a listed company's shares। ठीक है, तो कितना 50 शेयर हैं तो यू विल मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ ईच शेयर विद 50 and then you will come to know about the valuation of that company। ठीक है, ये है valuation of a listed company। now when we talk about the valuation of an unlisted company, then it is the process of estimating the total value of a startup company। ठीक है, उसने shares नहीं issue करे रहेंगे, so you will be able to tell by looking at the shares, so you will have to conduct a different process for estimating the total value of the startup company। Next है formula। So for valuation of a listed company's formula exists, which is current share price into the total number of shares। So this is quite simple। ठीक है, वही कि price of the share into the number of shares। ठीक है, इसके अलावा क्या है, unlisted startup company के केस में there is a complex formula in play which involves company's financial performance, its assets, liabilities, and its future growth potential। So, using these metrics, the valuation of the unlisted company can be estimated। ठीक है, देन एग्जाम्पल वही दिया है जैसे एप्पल कंपनी या बायजू, जो भी। ठीक है, नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट ट्यूबमेनिया। सो और ये हुआ था मिड 1600s में, नेदरलैंड्स का एक वो है इवेंट है वेयर इन ट्यूलिप फ्लावर्स गेन एक्सट्रीम पॉपुलैरिटी। ठीक है, तो क्या हुआ, दे बिकेम एक्सट्रीमली पॉपुलर, है ना। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन, तो क्या करा, पीपल ब्रॉट ट्यूलिप्स इन बल्क, thus hoping to resell it at higher prices।
ठीक है, तो बल्क में बहुत सारा खरीद के दे वर होपिंग कि दे विल रीसेल एट वेरी हाई प्राइसेस सिंस देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड इन द मार्केट। ठीक है, हाउएवर द बबल बर्स्ट हो गया मतलब कि द एक्सेसिव डिमांड एज वेल एज द एक्सेसिव प्राइसेस क्रैश्ड, एकदम से क्रैश हो गए। ठीक है, सो प्राइसेस क्रैश्ड thus causing huge losses to people। ठीक है, सो मॉडर्न दिस इज एन इवेंट विच हैड हैपेंड, और इसी को यूज करके एक मेटाफर बना दिया है कि इफ समथिंग लाइक दिस हैपेंस देन दैट विल बी नोन एज ट्यूलिप मेनिया। ठीक है, सो अभी कहाँ पे ये यूज करते हैं इस वर्ड को, इस फ्रेज को या मेटाफर को। दिस मेटाफर इज यूज व्हेन एसेट प्राइसेस राइज इररेशनली। ठीक है, दिस इज अ मेटाफर यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग दैट। ठीक है, when asset prices rise irrationally it is known as tulip mania। ठीक है, या bubble is becoming bigger ऐसे करके भी बोलते हैं। if you listen to some न्यूज़ लाइक जो होता है ना CNBC वगैरह, if you listen to that you'll get to listen you'll get to learn about these phrases and metaphors। ठीक है, नेक्स्ट है volatility, VIX। So, if the prices of a share change rapidly in a short time span, we call it highly volatile। Volatile, this is quite self-explanatory है ना। Volatile मतलब बहुत जल्दी जल्दी change हो रहा है। So that is what this depicts। If the prices of a share change rapidly in a very short period of time, then it will be called highly volatile। Then example दिया है कि Adani shares had fell after the Hindenburg report। So that is an example which has been given here। Now, mathematically it is expressed through an indicator called VIX। ठीक है, सो ये जो नोट्स है ना दीज आर मृणाल सर्स नोट्स ओनली, उनको थोड़ा सा वो करा हुआ है, समराइज करा हुआ है। ठीक है, सो आई मेंशन दिस फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स इन द बिगिनिंग इटसेल्फ so that you know these are Mrinal sir's notes but summarized। ठीक है, so mathematically it is expressed through an indicator called VIX। volatility को एक्सप्रेस करने के लिए इंडिकेटर क्या यूज करते हैं, VIX। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो एंड EPS, दैट इज अर्निंग्स पर शेयर। सो प्राइस टू अर्निंग रेशियो का जो फॉर्मूला है वो क्या है, as the name suggests the formula is also same, P/E, मतलब market price per share upon the earnings per share। ठीक है, वही है प्राइस टू अर्निंग्स, दैट इज मार्केट प्राइस अपॉन द अर्निंग्स विच कैन बी accrued फ्रॉम दैट शेयर। फिर अगर हाई है मतलब कि अगर P/E रेशियो बहुत हाई है मतलब प्राइस बहुत ज़्यादा है उसकी और अर्निंग्स कम हो रहे हैं, दैट मीन्स दैट द शेयर इज ओवर वैल्यूड और वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका प्राइस तो बहुत ज़्यादा है उस शेयर का बट उससे अर्निंग्स हमें कम हो पाएंगी। ठीक है, सो दैट विल बी नोन एज एन ओवर वैल्यूड शेयर। एंड इफ इट इज़ वेरी लो देन इट इज़ नोन एज एन अंडर वैल्यूड और अ चीप शेयर। ठीक है, तो अगर लो है मतलब कि क्या हुआ, द अर्निंग्स आर वेरी हाई however the prices are quite low। so जो न्यू स्टार्टअप्स में होते हैं जो which have a lot of promising फ्यूचर है ना, उनका द प्राइस टू अर्निंग रेशियो P/E रेशियो विल बी लो। whereas जो बहुत ही बड़ी कंपनी है and it is not doing well they will be having very high P/E ratio। ठीक है, नेक्स्ट है EPS। सो EPS क्या रहता है, अर्निंग्स पर शेयर। ये प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो होता है और अर्निंग्स पर शेयर। सो अर्निंग्स पर शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, you divide the company's profit by the total number of shares। ठीक है, so that is the earnings per share because कम वो समझ गए होंगे आपकी प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमंग्स द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। ठीक है, तो वही अर्निंग हो गई हर शेयर की, सो दैट इज वाई इट इज नोन एज अर्निंग्स पर शेयर। ठीक है,
Now, if the earnings per share is high, then it depicts that the company is quite strong. Whereas if it is low, then it shows that the company is weak. ठीक है. नेक्स्ट है leverage ratio and debt to equity ratio and ROCE, that is return on capital employed. ठीक है. तो जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसका आप लिटरल मीनिंग ही समझ लो कि कितना कैपिटल मैंने एम्प्लॉय करा और उसके करस्पॉन्डिंग हाउ मच रिटर्न आई एम अचीविंग गेटिंग. ठीक है. तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी बोल सकते हैं, ROE भी बोल सकते हैं उसको. So if the return on equity is high, then it is considered to be a strong company, and if it is low, then it is considered to be a weak company. ठीक है. So हम लोग देखिए, इसका फॉर्मूला इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट यू नीड टू रिमेंबर दैट जैसे अगर हमने जितना भी कैपिटल एम्प्लॉय करा है उसके करस्पॉन्डिंगली वी आर गेटिंग वेरी हाई रिटर्न्स, then that means it is a very strong company, they are doing quite well. Whereas जितना भी कैपिटल एम्प्लॉय करा है, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, ये सब जितना एम्प्लॉय करा है उसके करस्पॉन्डिंगली द रिटर्न्स विच आर बीइंग रिसीव्ड आर क्वाइट लो, देन इट इंडिकेट्स दैट द कंपनी इज क्वाइट वीक. ठीक है. नेक्स्ट है लीवरेज रेशो. सो लीवरेज रेशो रेफर्स टू द डेट टू इक्विटी रेशो. ठीक है. सो लीवरेज करना या लीवरेज करना होता है कि अपने से ज़्यादा का फ़ायदा कराना. ठीक है. सो डेट टू इक्विटी रेशो भी बोलते हैं इसको. डू रिमेंबर दिस कि लीवरेज अबिलिटी कितनी है किसी के पास. तो इसका फॉर्मूला क्या है, वही एज द नेम सजेस्ट्स डेट टू इक्विटी रेशो, है ना. तो डेट कितना रहेगा, डेट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ लोन्स, है ना. और और वो इक्विटी क्या रहेगा, टोटल अमाउंट ऑफ शेयर्स. ठीक है. सो इफ द डेट टू इक्विटी रेशियो इज हाई, देन दैट मीन्स दैट द कंपनी इज वीक. क्यों? बिकॉज अगर डेट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा है मतलब कि द डेट इज़ वेरी हाई, है ना. डेट अगर हाई है किसी कंपनी का, देन इट विल बी अ नेगेटिव इंडिकेटर, बिकॉज उसने काफ़ी सारा लोन लेके रखा है एंड इट हैज़ टू रिटर्न ऑल ऑफ दैट लोन. ठीक है. Similarly, if the debt to equity ratio is low, then it indicates that the company is strong. क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो अगर कम है, दैट मीन्स कि डेट भी कम है इनका एंड करस्पॉन्डिंगली द इक्विटी इज़ हायर. ठीक है. सो दैट विल इंडिकेट दैट द कंपनी इज़ स्ट्रोंगर. ठीक है. तो ये आप याद रखना कि लीवरेज रेशो मीन्स डेट टू इक्विटी रेशो. हमने वी हैव स्टडीड प्राइमरली अबाउट डेट एंड इक्विटी व्हेन इट कम्स टू शेयर मार्केट, है ना. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेशोज इज अ लीवरेज रेशो एंड इट मीन्स डेट टू इक्विटी रेशो. ठीक है. नाउ वी विल बी लुकिंग एट एबिटा, डेप्रिसिएशन एंड amortization. ठीक है. तो एबिटा, यू माइट हैव हर्ड दीज टर्म्स इन शार्क टैंक. ठीक है. शार्क टैंक में काफ़ी सारा यूज़ करते हैं ये टर्म्स को. सो एबिटा का फुल फॉर्म रहता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड amortization. ठीक है. तो दिस इज़ क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि अगर किसी भी कंपनी का रेवेन्यू आया है, उसमें से वो देखेंगे कि इंटरेस्ट हटाने से पहले, टैक्सेस हटाने से पहले, डेप्रिसिएशन, amortization, ये सब हटाने से पहले व्हाट आर दी अर्निंग्स. ठीक है. दैट विल बी नोन एज दी एबिटा. सो अ हायर एबिटा विल naturally indicate a better financial health of the company. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन में क्या है, इट रेफर्स टू द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिजिकल एसेट्स, एग्जाम्पल मशीनरी, बिल्डिंग्स ड्यू टू वेयर एंड टियर. ठीक है. दिस इज़ अ वेरी कॉमनली नोन टर्म. डेप्रिसिएट हो जाता है ना एसेट, मतलब कि उसका वैल्यू कम हो गया है क्योंकि वो खराब पुराना हो जाता है जब, ये दिस इज़ नोन एज डेप्रिसिएशन. देन amortization refers to the reduction in the value of intangible assets. सो intangible assets कौन से रहेंगे, वही पेटेंट, कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वो सब
ऑल ऑफ दोज आर इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, उनका अगर इफ द वैल्यू रिड्यूसेस ओवर टाइम, बिकॉज रिड्यूस क्यों होगा, जैसे कि पेटेंट इज अबाउट टू एक्सपायर और समथिंग, then the value will be reducing, so that is referred to as amortization। ठीक है, next we look at methods of issuing shares। सो सबसे पहले शेयर प्राइस को देख लेते हैं। सो शेयर्स जनरली हैव अ प्रिंटेड प्राइस ऑन द सर्टिफिकेट कॉल्ड द फेस वैल्यू और द पार वैल्यू। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फेस वैल्यू मतलब वो इसको लर्न करना विल बी इजी कि ये शेयर है, उसके जो फेस पे वैल्यू लिखा है दैट विल बी नोन एज द फेस वैल्यू और पार वैल्यू। ठीक है, एंड इसी को शेयर प्राइस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो, इफ अ शेयर इज सोल्ड एट अ हायर प्राइस देन द फेस वैल्यू, इट इज़ कॉल्ड ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम वैल्यू। ठीक है, मतलब कि उसका जितना फेस वैल्यू बन रहा था उससे ज़्यादा पैसे पे बिका है, देन इट इज़ बीइंग ट्रेडेड एट अ प्रीमियम। प्रीमियम पे बेचा है मतलब ज़्यादा पैसे का बेचा है। ठीक है, देन इफ द शेयर इज बीइंग सोल्ड लोअर दैन द फेस वैल्यू, इट इज़ कॉल्ड ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट पे बेचा है, कम पैसों में बेचा है। ठीक है, सो इफ इट इज सोल्ड एट हायर प्राइसेस देन प्रीमियम, और कम प्राइस पे डिस्काउंट पे बेचा है। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल व्हिच इज गिवन, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वील लुक एट सम कंपनी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स शेयर मार्केट में जो यूज़ होते हैं। सो एन एग्जाम्पल नहीं, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ गाइडेंस रिपोर्ट। ठीक है, गाइडेंस रिपोर्ट होता है, इट कंटेन्स द कंपनीज एस्टिमेट्स ऑफ इट्स फ्यूचर ग्रोथ। ठीक है, सो कंपनी रिलीजेस दिस रिपोर्ट फॉर इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स और एनालिस्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है, देन प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस इज कि कंपनी का प्रोस्पेक्टिव क्या क्या है, व्हाट डज इट इंटेंड टू अचीव। सो इट इज़ द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंपनी विच इज़ गोइंग फॉर एन आईपीओ। ठीक है, सो अगेन दिस इज क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट थिंग। गाइडेंस रिपोर्ट क्या रहेगा, एस्टिमेट ऑफ द फ्यूचर ग्रोथ। Let me check once कि whether this is completely correct or not, accurate or not. So guidance report, हाँ वही एक्सपेक्टेशंस के along रहेगा, it will be an estimate of the future growth, whereas the prospectus will be a document relating to the IPO। and how do we learn this, देखो prospectus है ना, और ये IPO का PO से मैच हो रहा है, prospectus का pro है ना, so that is how you can link and remember this। Next है guidance। Guidance report will be containing the company's estimates of its future growth। ठीक है, so company will be releasing this report for investors or shareholders or analysts etc। ठीक है, तो इसको गाइडेंस मतलब कि उनको गाइड करने के लिए कोई रिपोर्ट निकाल रहे हैं कि वी वांट टू अचीव दिस मच, सो उनको थोड़ा सा एस्टिमेट दे देंगे फ्यूचर ग्रोथ का, सो दे विल बी एबल टू गाइड द इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स और एनालिस्ट्स। ठीक है, now we'll be looking at the difference between an IPO and an FPO। So an IPO stands for initial public offer, whereas an FPO stands for follow on public offer। ठीक है, सो IPO में क्या रहेगा, द शेयर्स विल बी इशूड टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ दैट इज, जैसे LIC का IPO अभी मामा अर्थ का शायद आया था या आने वाला था, देन जेप्टो का आने वाला है। ठीक है, ये सब। एंड फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्या है, इशूइंग शेयर्स टू द पब्लिक फॉर द नेक्स्ट टाइम। सो जैसे अडानी का FPO आया था, इट वॉज लेटर विड्रॉन बिकॉज of the Hindenburg
रिपोर्ट। ठीक है, तो जब फर्स्ट टाइम इशू कर रहे हैं देन दैट विल बी नोन एज एन आईपीओ, एंड द सेकेंड टाइम व्हेन इट इज इशूड इट इज नोन एज अ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। और फिर यहाँ पे एक दिया है कि गवर्नमेंट हैड डिसइन्वेस्टेड अ पोर्शन ऑफ इट्स शेयर नियरली 5% वाया एन आईपीओ। ठीक है, तो उन्होंने एलआईसी में जो उनका शेयर था 5% का, दे डिसइन्वेस्टेड इट वाया एन आईपीओ। नेक्स्ट है अंडर राइटर और लीड मैनेजर्स। सो अंडर राइटर इज बेसिकली अ मर्चेंट बैंकर और एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। ठीक है, इनका काम क्या होता है? The main responsibility is to issue an IPO, ठीक है, या FPO on behalf of the company promoters. So if an IPO is not fully subscribed, then the underwriter is the one who will have to buy the unsold shares. ठीक है, और लीड मैनेजर को ही वही अंडरराइटर को ही लीड मैनेजर बोलते हैं। एंड there is no there is some internal difference between the two as well, but that is not important from the exam point of view। ठीक है, तो क्या क्या है? अंडर राइटर और लीड मैनेजर मीन्स द सेम थिंग। सो दे विल बी द ones in charge for an IPO or an FPO, and in case it is not fully subscribed, मतलब कि not many people buy the IPO and portions of the shares are still left, then in that case the underwriter will be the one who will be buying the unsold shares। ठीक है, next we'll be looking at IPO, FPO and QIP। So IPO and FPO, as explained above, we have already seen the definition। Then rights issue देख लेते हैं। So company issues additional shares but gives first right to the existing shareholders to buy them. That is known as a rights issue। मतलब कि new shares FPO type they have been issued. However, the first right to buy these will be with the existing shareholders। ठीक है, and if they refuse only then will they be offered to outsiders। ठीक है, so next है QIP। QIP stands for qualified institutional placement। ठीक है, सो इसका क्या होता है मीनिंग? व्हेन अ कंपनी इशूज द शेयर ओनली टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, इन सब के लिए ही इफ द company issues the shares then it is known as a qualified institutional placement। ठीक है, तो क्या होता है? जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं दे विल बी इन्वेस्टिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, सिंस दे हैव लार्ज पूल ऑफ मनी, है ना। एंड इनके लिए या कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इफ shares are being issued then it will be known as a qualified institutional placement। नेक्स्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट। सो प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या है? इफ a company offers to sell its shares only to another company but not to other retail investors then it is known as a private placement। ठीक है, सो ओनली किसी भी प्राइवेटली किसी और पर्सन के लिए या दूसरी कंपनी के लिए इशू कर रहे हैं शेयर्स, नॉट फॉर एवरीवन एल्स, देन इट इज़ कॉल्ड अ प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, नाउ वील बी लुकिंग एट ADR और GDR। So ADR stands for American Depository Receipt and GDR stands for Global Depository Receipt। ठीक है, सो ADR को देख लेते हैं। इट अलाउज अ नॉन अमेरिकन कंपनी टू रेज फंड्स इन द US स्टॉक मार्केट विदाउट डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन। सो फॉर एग्जाम्पल, if an Indian company wants to raise funds from United States का stock market, then what will they do? They'll go for American depository receipts। ठीक है, so they won't have to register in the US, but they can still get funds from there। ठीक है, so the company gives shares to a US bank which then issues an ADR to American investors, and these are generally denominated in US dollars itself। Global depository receipt क्या है? It is a similar concept, however in this case you can raise funds from different countries। ठीक है,
multiple countries through a single bank. So these are generally denominated in US dollars or euros. Okay, so these are fairly simple concepts. इसको यहाँ पे वही है कि कोई भी बैंक रहेगा यूएसए में, यूएस का बैंक है, और मेरे को वहाँ से मोबिलाइज करना है मनी. आई हैव अ कंपनी एंड फॉर दिस कंपनी आई वांट टू मोबिलाइज फंड्स फ्रॉम यूएसए. सो व्हाट विल आई डू? आई विल ऑफर शेयर्स टू दिस यूएस का बैंक, and this bank will then issue ADRs और GDR. ठीक है, ये जो ADR और GDR हैं, these can be bought by American investors or other investors. ठीक है, investors will be buying this. ठीक है, so this is the basic concept behind this. Next we are looking at initial coin offering. So initial coin offering का purpose क्या है? In this, basically the company raises funds to launch a new cryptocurrency or a related service or app. So investors subscribe to the initial coin offering and receive tokens. So they won't be receiving shares, but they'll rather be receiving tokens in this case. These tokens can be used to buy companies, coins or services, or be sold to others as well. So ये IPO जैसे सिमिलर कंसेप्ट लाने का कोशिश कर रहा है, बट इन द क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड. ठीक है, so in this the company will be raising funds to launch a new cryptocurrency or to launch some new service or something like that. ठीक है, इसमें शेयर्स की जगह tokens are the things which will be issued, and token can be used by the to buy companies services, or it can also be used, or it can also be sold to others. ठीक है, so that is all that is there in this topic. Next is stock exchanges and secondary market, meanings and examples. So stock market consists of primarily two things. We have the primary market as well as the secondary market. Primary market में क्या होगा? The shares are first issued through an IPO, whereas in the secondary market the shares will be resold on stock exchanges like BSE, NSE, etc. ठीक है, सो ये हो गया. देन की स्टॉक एक्सचेंजेस कौन से हैं? वर्ल्ड का जो ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है दैट इज़ इन नेदरलैंड्स, एम्स्टरडैम. ठीक है, इसको लर्न कैसे करेंगे? आप उससे लिंक कर लीजिए. वो क्वीन करके एक मूवी थी ना, इन दैट मूवी शी हैड विजिटेड एम्स्टरडैम इन नेदरलैंड्स. ठीक है, देन एशियाज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, आर वेरी ओन स्टॉक एक्सचेंज. कब बना था? 1875 में. देन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज टाइमलाइन क्या है? सबसे पहले BSE, देन अहमदाबाद, कोलकाता, एंड देन लास्ट में NSE में बना था 1990s में. ठीक है, नाउ हाउ डू यू लर्न कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बना है 1875 में? लिंक दिस विद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में 1975 के आसपास क्या हो रहा था? सॉरी, 1875 के आसपास 1885 में द कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड. ठीक है, अंडर AO ह्यूम्स. ठीक है, तो उससे थोड़ा सा लिंक करोगे ना, देन इट विल बी इजी टू रिमेंबर. सो बिफोर द कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वॉज ऑल्सो फॉर्म्ड इन इंडिया. ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेडिंग सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज. So first of all we have Bolt and Neat. These are electronic trading platforms of Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange respectively. Then we have VSAT. VSAT is satellite based communication for stock exchanges. ठीक है, अगेन दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और ये बोल्ट और नीट भी इम्पॉर्टेंट है. देन वी ऑल्सो हैव सेपरेट प्लेटफॉर्म्स. फॉर एग्जाम्पल सम स्टॉक एक्सचेंज हैव डिफरेंट exchanges have different platforms for debts and equities trading. ठीक है, तो इसमें वही दिया है कि जो यू नीड टू रिमेंबर दीज टू वर्ड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल बोल्ट और नीट है ना. तो बोल्ट का जो B है इट इज सेम एज बॉम्बे,
स्टॉक एक्सचेंज का भी सिमिलरली नीट का जो एन है इट इज़ सेम एज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एन, ठीक है। सो बोथ ऑफ देम दिस विल बी इजी टू लिंक एंड रिमेंबर, ठीक है। और वी सैट भी लर्न कर लेना, सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन प्राइमरली फॉर स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है। और सम स्टॉक एक्सचेंजेस हैव डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स फॉर डेट्स एंड इक्विटी ट्रेडिंग, तो अलग अलग रहेगा, सेपरेटेड प्लेटफॉर्म्स विल बी देयर। नेक्स्ट है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सो ये प्राइमरली किस पर्पस के लिए होता है, दिस इज एम्ड एट रेजिंग फंड्स फॉर सम सोशल इशू, रेजिंग फंड्स फॉर social issue या for companies which work towards some social issue, ठीक है। ये रहेगा इसका बेसिक पर्पस क्या है, इट इज़ अ मार्केट फॉर बाइंग और सेलिंग शेयर्स, बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड्स टू फंड सोशल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सोशल प्रोजेक्ट्स लाइक हंगर, पावर्टी, ये सब। नेक्स्ट बजट में क्या, इट वॉज अनाउंस्ड दैट अंडर सेबी रेगुलेशन, हाँ वही, it was first introduced in budget 2019 and it was brought under SEBI's regulation and aimed at helping social enterprises and NGOs to raise capital, ठीक है। इसमें ये पोर्शन की ज़रूरत नहीं है इतनी, ठीक है। नेक्स्ट है कमिटीज, सो SEBI had set up the Ishad Hussain Committee and later the Harsh Bhanwal panels to study social stock exchange. So again this is also important from the exam point of view. तो क्या क्या नाम है, इशात हुसैन, हाँ अच्छा। और करंट स्टेटस क्या, देर आर अराउंड 51 NGOs and NPOs which have raised around 12 crores for education, livelihood and skill development via this platform. और लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है, दे शुड डिस्क्लोज देयर ऑडिट रिपोर्ट्स एंड हैव एटलीस्ट 3 years of experience, ठीक है। सो वी नीड टू रिमेंबर दीज फैक्ट्स नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज द नेम्स ऑफ द कमिटीज़, ठीक है। तो हमें वी हैव टू लिंक दीज टू नेम्स विद सोशल, तो इसहात हुसैन है ना, ऐसे कर लो इसहात हुसैन, हाथ से क्या हो जाएगा, हैंड, है ना। सो द हैंड्स शुड बी यूज्ड टू use for social development, upliftment. So hands should be used for social upliftment of all, ठीक है। ऐसे करके लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हाथ, हाथ मतलब हैंड, इस हाथ हुसैन, हैंड शुड बी यूज फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव हर्ष भानवाला, हर्ष से आप लिंक कर लो, हर्ष भानवाला का जो हर्ष है, हर्ष मीन्स हैप्पीनेस, अगर सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ एवरीवन इज डन देन हैप्पीनेस, इट रिजल्ट्स इनटू हैप्पीनेस, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल रिजल्ट्स इन हैप्पीनेस, ठीक है। तो वैसे करके यू कैन लिंक दिस एंड रिमेंबर इसहात हुसैन एंड हर्ष भानवाल। नेक्स्ट वी नीड टू रिमेंबर कि 3 साल का एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी फॉर getting listed on the social stock exchange. सो 3 साल, सो ये ऐसे लर्न हो जाएगा कि देखो एटलीस्ट जो एक जो 1 year एक्सपीरियंस का रहेगा उसको तो नहीं देंगे बिकॉज दे हैव जस्ट स्टार्टेड डूइंग दिस वर्क, देयरफॉर एटलीस्ट 2-3 साल का तो होना ही चाहिए इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट कहीं पे भी ऐसे स्कैम ना हो रहा हो, ठीक है। तो 3 years वैसे करके आप लोन कर लो,
नहीं तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज, एक्सचेंज का जो ई है इट लुक्स लाइक इन्वर्टेड थ्री। ठीक है, तो वैसे करके लर्न कर सकते हैं कि 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंडरी मार्केट, द सिग्निफिकेंस और बेनिफिट्स ऑफ स्टॉक मार्केट्स। सो this is not important from the preliminary examination point of view, but just read this for understanding purposes. तो क्या क्या benefits हैं? There will be low transaction costs, है ना? Liquidity will be high because it is easier to buy and sell financial assets on a stock market. ठीक है? Then price discovery is comparatively easier. So it helps to determine fair prices for shares and bonds. Then economic growth भी जल्दी हो जाती है. Investors sell in secondary market and then invest in new IPOs, thus boosting the economy. ठीक है. तो ये सब चीज़ें हैं. Then we look at demat account and depositories. So basically जो demat accounts है ना, these are used for holding securities like shares and bonds. ठीक है. So we'll just look at what is written here. Depositories are paper based trade. देखो, why are depositories needed? Because paper based trading is very slow and risky. There is always a problem, या there is always a chance of theft, forgery or fire. ठीक है. So depository में क्या रहेगा? They will be holding securities in electronic form and thus enable online trading. So on इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को डीमटीरियलाइज्ड फॉर्म भी बोलते हैं. डीमटीरियल मतलब विदाउट एनी मटीरियल, दैट मीन्स इट इज़ कम्प्लीटली ऑनलाइन. ठीक है. देन वी लुक एट रीमटीरियलाइजेशन. सो रीमटीरियलाइजेशन में द डिपॉजिटरी कैन कन्वर्ट द इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज back to the physical form upon request. ठीक है. So this is an important definition as well. कि rematerialization के through you'll get a physical certificate for a particular security which you have. ठीक है. Then demat account. So it is required primarily for trading and it is opened with a depository participant such as banks, NBFCs, इन सब के साथ मिलके खोलते हैं डीमैट अकाउंट को. ठीक है. Next है regulation. So SEBI regulates the depositories under the Depositories Act of 1996. So again this is also quite important कि regulate किसके अंडर, कौन से एक्ट के अंडर करा जा रहा है. It is the Depositories Act of 1996. So how do you remember the year? Try to link it with your birth date. जो जितना भी आपका है, जिस भी ईयर का है, रिमूव. जैसे 2001 का है सपोज, देन 5 years बिफोर दैट द डिपॉजिटरीज एक्ट वॉज इनैक्टेड. ठीक है. वैसे करके लर्न कर सकते हैं. नेक्स्ट है की डिपॉजिटरीज इन इंडिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव CDSL एंड देन NSDL. ठीक है. सो CDSL स्टैंड्स फॉर Central Depository Services Limited and NSDL stands for National Securities Depository Limited. ठीक है. ओन्ड बाय वो भी ऐसे देख लो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. सो जो CDSL है इट इज़ बीइंग ओन्ड बाय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, HDFC, कैनरा बैंक एट्सेट्रा. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन हियर इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है. देन जो NSDL है इट इज़ बीइंग ओन्ड बाय NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, UTI, SBI, IDBI, all of these banks. ठीक है. And it also has an RBI license for a payment bank. ठीक है. तो इसमें लर्न कैसे होगा? N फॉर NSC और C के पहले क्या आता है? BSC. ठीक है. तो दैट इज़ हाउ यू कैन परहैप्स रिमेंबर दिस. इसके बाद में मार्केट ग्रोथ देख लेते हैं. सो there are around 9.2 crore registered investors in India and 20% of the Indian households now invest in financial markets. तो ये
This metric is not important since थोड़ा सा पुराना metric है, 2 साल पहले का है ये. Still you can remember the such data for quoting in mains answers. ठीक है. नेक्स्ट है डीमैट आसपा रिफॉर्म्स इन आईपीओ और प्राइमरी मार्केट. सो क्या होता है, एक बार आईपीओ स्कैम और सेबी रिफॉर्म्स के बारे में देख लेते हैं. सो देयर वाज अ fraudster named Rupal Panchal in 2005. He had created various fake demat accounts to get more IPO share allocations, and thus he used to sell them at very high prices. ठीक है. क्या किया इन्होंने इन्होंने ऐसे करा, इन्होंने अपनी कंपनी का आईपीओ निकाला. एंड क्या करा इन्होंने, ही क्रिएटेड वेरियस फेक डीमैट अकाउंट्स. ठीक है. और इन जो भी फेक डीमैट अकाउंट्स थे, ही मेड देम सब्सक्राइब टू दिस आईपीओ. ठीक है. ये करने से क्या हुआ, इनके पास आ गए. उसके बाद में once these fake demat accounts had their shares, he started trading these shares in the market, सेकेंडरी मार्केट. ठीक है. तो सेकेंडरी मार्केट में ऐसे ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड अ डिमांड फॉर दीज शेयर्स, और उन्होंने अपना प्राइसेस को ऐसे जैकअप कर लिया. ठीक है. एंड देयर वाज नो प्रॉपर कंपनी बिहाइंड दिस. जिस कंपनी का आईपीओ निकाला था वो ऐसे ही कुछ भी था, नॉट अ प्रॉपर कंपनी. ठीक है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्रॉड. ठीक है. सो वही सेबी टुक सम एक्शन. इट मेड पैन कार्ड मैंडेटरी फॉर ओपनिंग डीमैट अकाउंट्स. नहीं तो ऐसे फेक डीमैट अकाउंट्स काफ़ी लोग खोल खोल के दे वर मिस यूजिंग द इंटायर सिस्टम. ठीक है. सो इसमें जस्ट रिमेंबर दैट पैन कार्ड्स आर मैंडेटरी फॉर ओपनिंग डीमैट अकाउंट्स. दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस. नेक्स्ट है आसबा application supported by blocked amount. So how does it work? So जो एक कोई भी इन्वेस्टर रहेगा, उनका जो आईपीओ का एप्लीकेशन अमाउंट है दैट विल बी ब्लॉक्ड इन देयर बैंक अकाउंट. ठीक है. एंड द मनी विल बी डिडक्टेड ओनली इफ द शेयर्स गेट अलॉटेड टू देम. So this is the entire procedure of how the ASBA functionality works. ठीक है. तो क्या होगा कि अगर आईपीओ को किसी भी आईपीओ में अप्लाई करा है, जैसे मैंने मेरे पास ये मेरा बैंक अकाउंट है एंड कोई कंपनी का आईपीओ आ गया है. ठीक है. और दिस इज माय बैंक अकाउंट. सो व्हाट विल आई बी डूइंग इज, सपोज द आईपीओ इज फॉर सपोज 50,000 रुपीज़ का एक शेयर है. नहीं मतलब सब्सक्राइब करने के लिए यू रिक्वायर 50,000 रुपीज़. ठीक है. सो 50,000 रुपीज़ का क्या होगा, जो मेरा बैंक अकाउंट है उसमें 50,000 रुपीज़ विल गेट ब्लॉक्ड. ठीक है. सो इट कैन नॉट बी यूज फॉर अदर पर्पसेस. एंड इन केस आई गेट दी आईपीओ, मतलब आईपीओ के ड्यूरेशन में आई एम एबल टू सब्सक्राइब टू द आईपीओ, देन दिस अमाउंट विल गेट डिडक्टेड एंड बस हो जाएगा वो, है ना. एंड इन केस दे आर नॉट अलॉटेड, द शेयर्स आर नॉट अलॉटेड टू मी, बिकॉज बहुत सारे लोग कई बार द आईपीओज आर ओवर सब्सक्राइब, मतलब बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब करा है. सो अब सब लोगों को तो मिल नहीं सकता. ठीक है. तो दे माइट either they'll come up with a lottery system or something else like that. So in case I do not get the shares allotted to me, then this money will stay in my account. ठीक है. बेनिफिट्स क्या है, ओनली सीनियर serious investors with sufficient bank balance can apply, and the investor earns bank interest on the blocked amount until IPO has been allotted. नहीं तो पहले ही अगर पैसे दे देना होते, then this money will not be earning any interest rate. So थोड़ा सा लॉस हो सकता है. दिस इज़ नॉट द आइडियल सिचुएशन फॉर अ पर्सन. ठीक है. नेक्स्ट है 3 to 5, अच्छा 60%. सो फेक आईडीज में समटाइम्स फेक आईडीज यूज़ करके ऑल्सो पीपल समटाइम्स अप्लाई. ठीक है. सो if some amount of money is already being blocked, then the chance of this fake
एप्लीकेशन एंड ऑल ऑफ दिस विल बी एलिमिनेटेड। ठीक है, क्योंकि उनका बैंक अकाउंट में पैसे ब्लॉक हो रहे हैं ना, तो ऐसे ही फालतू में कोई भी नो वन विल बी सब्सक्राइबिंग टू एन आईपीओ। ठीक है, इसमें द ओनली इम्पोर्टेंट पोर्शन हियर इज दीज टू पॉइंट्स। नेक्स्ट है ISIN नंबर। ISIN stands for International Securities Identification Number। ठीक है, so ISIN is basically a 12 character code consisting of both letters as well as numbers, and it is used to identify securities। Purpose क्या है? It helps in the standardized tracking of stocks, bonds and other securities globally। ठीक है, तो this is an important topic, International Securities Identification Number। The name itself is self explanatory। ठीक है, और बस इसके बारे में पता होना चाहिए कि इट इज़ अ 12 कैरेक्टर कोड, सो यू शुड रिमेंबर दैट 12 कैरेक्टर कोड रहता है ये ISIN। इसको लर्न कैसे करेंगे कि 12 कैरेक्टर कोड है? ISIN का जो ये दिया है I और S, इट लुक्स लाइक 12, है ना, वन तो सेम है दोनों का, I और 1, और S को अगर इन्वर्ट कर देंगे देन इट बिकम्स 2। ठीक है, सो मे बी दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस। नेक्स्ट है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ कंपनीज हैव डिफरेंट ISIN नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट CAS सिस्टम। CAS इज मंथली स्टेटमेंट, मतलब हाँ कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट को बोलते हैं। So what is a CAS? It is a monthly statement showing an investor's transactions across mutual funds, shares, bonds, etc. in a DMAT format। DMAT stands for dematerialized mode। ठीक है, और who sends it? It is the depositories like NSDL, CDSL who email it to investors। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट बनता है एक बार हमेशा, and the depositories will be the one who will be emailing it to the investors। So this is not an important topic। ठीक है, इससे नेक्स्ट बेनिफिट्स हैं कि वो इट विल अलर्ट द investor about any fraudulent transactions and it provides total value of the investments, not very important। ठीक है, next we'll be looking at CCPs, that is central counterparties। तो सेंट्रल काउंटर पार्टीज क्या है? दीज आर दी इंटरमीडियरीज बिटवीन अ, देखो नाम जो होता है ना, इट इज़ ऑफन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, तो इवन इन द ड्यूरिंग द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इफ़ यू सी के कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उसका नाम आप प्रॉपरली पढ़िए एंड ट्राई टू डिसाइफर इट फ्रॉम देयर। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया था खराई कैमल के बारे में, है ना, खराई कैमल का कुछ भी क्वेश्चन आया था तो उसमें क्या, there were some options given, and according to one of the options, the option was ki these kind of camels can live in and they can drink salty water। ठीक है, तो आप ऐसे करके कुछ ऑप्शन था, आई एम नॉट वेरी श्योर, आई डू नॉट रिमेम्बर प्रॉपरली, पर सॉल्टी वाटर से रिलेटेड था। तो इनका नाम देखो, खारा, खारा मतलब क्या होता है? खारा पानी है, मतलब सॉल्टी वाटर है ना, तो that statement will be correct। ठीक है, so this is just one example which I have given, in many questions this applies। जो भी नाम दिया है ना, try to read it properly and decipher it properly, especially if you are not able to come to the answer अपने आप, then look at the name और उसके accordingly answer करो। ठीक है, now what are central counterparties? These are intermediaries between buyers and sellers in financial markets, लाइक जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, टी बिल्स, ये सब जो होते हैं ना, उनके बीच में कोई इंटरमीडियरी रहेगा इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द इंटायर ट्रांजैक्शन इज प्रॉपरली कैरिड आउट, स्मूथली कैरिड आउट। ठीक है, बस इतना ही है इसमें। सेंट्रल काउंटर पार्टी। नेक्स्ट रोल इन ट्रेड क्या है? CCP बिकम्स द
सेलर टू द बायर एंड बायर टू द सेलर। अब देखो इसको मैं ऐसे ही समझा देती हूँ। सो दिस इज सपोज वन पार्टी, ये ए है इनका नाम और इनका नाम है बी। सो वन ऑफ देम इज अ सेलर, वन ऑफ देम विल बी अ बायर। ठीक है, इन दोनों के बीच में देयर विल बी एन इंटरमीडियरी। नाउ दिस इंटरमीडियरी विल बी द सीसीपी, दैट इज सेंट्रल काउंटर पार्टी। ठीक है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस? It is to ensure that the transaction between these two occurs smoothly। ठीक है, बस यही काम है इनका। ठीक है, रोल इन ट्रेड क्या है? The CCP becomes the seller to the buyer and buyer to the seller, and this process is called as novation। ठीक है, if one party fails to honor the trade, the CCP will ensure that the transaction is completed, thus preventing system failure। जो इन ये एक फैक्ट दिया है कि जो इंडियन सीसीपीज होते हैं, दे हैव बीन फेसिंग अ लॉट ऑफ रेगुलेटरी इश्यूज इन यूरोप विद ईएसएमए। तो ये ऐसे थोड़ा सा पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज का फैक्ट है। नाउ व्हाट डू यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम दीज टू थ्री पॉइंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड नोवेशन। नोवेशन मतलब वही कि इंटरमीडियरी जैसे एक्ट कर रहा है। सो सीसीपी विल बिकम द बायर फॉर द सेलर एंड सेलर फॉर द बायर। ठीक है, if one party fails to honor the trade, कोई सिस्टम फेलियर को अवॉइड करने के लिए सीसीपी विल स्टेप इन। ठीक है, देन वो कंट्रोवर्सी देख सकते हैं कि इट इज़ फेसिंग रेगुलेटरी इश्यूज। नेक्स्ट है सीसीपी रेगुलेशन इन इंडिया। सो अगर मनी ट्रांसफ़र है बिटवीन द बायर एंड द सेलर, देन रेगुलेटर कौन रहेगा? इट विल बी आरबीआई यूजिंग द its powers under the Payments and Settlement System Act of 2007। Now, when it comes to foreign currency transactions, then again RBI will be the one who is regulating, but it will be exercising its powers again under this act, Foreign Exchange Management Act। ठीक है, and then अगर shares, bonds or commodities हैं, then SEBI will be the one who will be regulating, and it will be regulating under the SEBI Act of 1992 and the Securities Contract Regulation Act of 1956। ठीक है, now next we'll be looking at the types of investors। So depending upon there are various categories along which they have been divided। First of all, we are looking at the types of investors based upon the buying capacity। ठीक है, so there are two types primarily। There are qualified institutional buyers and retail investors। So qualified institutional buyers are, as we had seen earlier also, these are the buyers having lot of money and they will be primarily organizational buyers। ठीक है, तो large investors with expertise and financial strength, example mutual funds, insurance companies and foreign venture capital funds, all of these are qualified institutional buyers। ठीक है, नेक्स्ट है सेबी रेगुलेशन। दे हैव सेपरेट रजिस्ट्रेशन नॉर्म्स। और एंकर इन्वेस्टर्स क्या है? दे आर अ सब टाइप ऑफ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हु आर अलॉटेड शेयर्स बिफोर एन आईपीओ इज लॉन्च इन ऑर्डर टू बूस्ट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। मतलब कि दे एक्ट एज एंकर्स, है ना, एंकर जैसे काम करते हैं। एंकर जैसे काम करके दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द कमिंग आईपीओ एंड ऑल्सो प्रोवाइड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस फॉर द अपकमिंग आईपीओ। ठीक है, तो दे इन्वेस्ट इनटू द शेयर्स बिफोर द आईपीओ इज लॉन्च्ड। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वेस्टर रिटेल इन्वेस्टर्स। सो रिटेल इन्वेस्टर्स आर पीपल लाइक यू एंड मी। सो इसमें क्या है? दे आर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हु आर नॉट क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ठीक है, एंड वही सेबी नॉर्म्स में अंडरराइटर्स allocate separate quotas for QIBs and separate quotas for retail investors in an IPO। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स डिपेंडिंग अपॉन द बाइंग बिहेवियर।
सो जैसे कि जो स्टॉक मार्केट के की पार्टिसिपेंट्स क्या है उनको पहले देख लेते हैं। हाँ, इसमें प्राइमरली वो ही दिया है, depending upon the buying behavior there are different type of participants in the stock market. So first of all we will be having jobbers will be the persons whose full time job is trading, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, they are full time traders and they will be buying and selling securities using their own money, unlike brokers who trade for clients, ठीक है। तो अपने पैसे से they will be doing the money the trades and their full-time job is that of trading. Next we have stags. So stag मतलब male deer को बोलते हैं, the literal meaning is a male deer. They'll be buying newly issued securities from the primary market and will be selling this quickly in the secondary market for profit, ठीक है। तो quickly they'll sell it in the secondary market for profit. तो इसमें how will you remember that this is what a stag is? स्टैग क्या करता है, डियर को बोलते हैं ना, इट रन्स क्विकली, है ना। आपने देखा होगा डियर काफ़ी तेज भागता है। सो इसमें भी क्या होता है, दे बाय न्यूली इशूड सिक्योरिटीज फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट एंड देन क्विकली गो टू द सेकेंडरी मार्केट एंड सेल दीज फॉर अ प्रॉफिट। नेक्स्ट है बुल। सो वी हैव टू टाइप्स, प्राइमरली बुल एंड बियर। सो बुल इज अ पर्सन हु इज ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। ही इज एन ऑप्टिमिस्टिक स्पेकुलेटर who expects the price to rise and buys shares to sell later at a higher price, like a bull pushing up the prices. Similarly जो bear होता है, that is someone who is a pessimistic speculator who expects the prices to fall and therefore sells shares to profit from the decline. तो इसको हम लोग विजुअलाइज कैसे करेंगे, जो बुल रहेगा दे विल बी बाइंग अ लॉट ऑफ शेयर्स एंड so that the prices, if the prices rise later on they'll be selling it at a higher price. तो बुल का it has horns, है ना। तो बुल को अगर किसी पर्सन को या किसी भी इंडिविजुअल को हार्म करना होता है तो क्या करता है, ये हॉर्न से ऊपर को उछालता है किसी भी पर्सन को, ठीक है। तो बुल मतलब राइस का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक है। वेराज बियर क्या करता है, बियर when it wants to attack someone then it will simply um ये है सपोज बियर, हाँ इट विल ऐसे जो भी एनिमी रहेगा उसको ऊपर से दबा लेता है, ठीक है। तो दिस विल बी अ बियर, है ना। बियर विल बी समवन हु एक्सपेक्ट्स द प्राइसेस टू फॉल, तो नीचे का कर देगा, ठीक है। तो पेसिमिस्टिक स्पेकुलेटर को हम लोग बियर बोलेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट है डिस्पोजिशन इफेक्ट, देख लेते हैं। सो इफ एन इन्वेस्टर इज इन प्रॉफिट ही विल सेल इमीजिएटली, but if he is in loss then he will continue to hold it for a long time even if it results into more losses, because देखो ऐसे लगता है उनको कि चलो अभी तो लॉस में है ही, तो लेट अस होल्ड इट फॉर सम टाइम ताकि क्या पता प्रॉफिट हो जाए। सो दैट इज़ वाई दे कंटिन्यू टू होल्ड इट इवन इफ दे आर इन लॉस, और अगर प्रॉफिट में रहेगा तो दे विल सेल इट इमीजिएटली इन ऑर्डर टू इनकैश देयर बेनिफिट्स, ठीक है। तो दिस इज नोन एज द डिस्पोजिशन इफेक्ट। SEBI uses this term to describe the behavior of Indian investors in IPO, ठीक है। तो नाम क्या है, डिस्पोजिशन इफेक्ट, मतलब कि द डिस्पोजिशन ऑफ अ पर्सन या ऑफ एन इन्वेस्टर टू बिहेव इन सर्टन वे, ठीक है। बिहेवियर की बात हो रही है कि अगर प्रॉफिट है तो एकदम से दे विल सेल इट, वेयर एज इफ देयर इज अ लॉस देन दे विल होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दिस मे रिजल्ट इट even if it results in more losses, ठीक है। नेक्स्ट है स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग बेस्ड ऑन ड्यूरेशन एंड रिस्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मार्जिन ट्रेडिंग। मार्जिन ट्रेडिंग होता है, डे ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं एंड ब्लॉक डील, देन वी हैव कॉन्ट्रा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। सो वी विल बी लुकिंग एट ऑल दीज टर्म्स।
So first of all we have margin trading. So when a person is buying more shares than he can afford to buy, and this is generally done by borrowing money from the broker, that is known as margin trading. मतलब वो मार्जिन के अपना जो मार्जिन है उससे बाहर कर दे, ही इज ट्रेडिंग, ठीक है, ही इज बाइंग मोर शेयर्स देन व्हाट ही कैन अफोर्ड। तो लोन लेके ये सब करके दे विल बी बाइंग इट, है ना। दिस इज क्वाइट रिस्की बिकॉज इफ द इन्वेस्टमेंट फॉल्स बाय चांस देन द पर्सन विल गेट इनटू ह्यूज डेट, ठीक है। सो दिस इज अबाउट मार्जिन ट्रेडिंग, मतलब मार्जिन पे ट्रेड कर रहे हैं, even though he or she does not have the money, they are continuing to buy the securities or shares. Next we have day trading or intra-day trading. So agar if an individual buys and sells the shares over the internet over a period of a single day's trading, ठीक है, that is known as डे ट्रेडिंग, ठीक है। इनका इंटेंशन क्या होता है, टू प्रॉफिट फ्रॉम स्मॉल प्राइस फ्लक्चुएशंस, थोड़ा बहुत जो भी प्राइस फ्लक्चुएशन होगा उससे दे वांट टू benefit, and they'll be buying as well as selling that share within the same day itself, ठीक है, and this is called as day trading. Next is swing trader. Swing trader is a person who buys a share for just a few days or a weeks and then sells it for a profit, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, डे ट्रेडिंग में एक दिन के लिए करते हैं, वेयर एज स्विंग ट्रेडिंग में it is for a few days or a few weeks and then they sell it for a profit. Then we have long term investors. So long term investor में क्या रहेगा, he is buying for himself and he will be holding the share for more than an year, ठीक है। So long term investor will be holding it for more than an year, so you need to remember that more than 1 year will come in long term investing, ठीक है। And few days to a few weeks comes in swing trading and day trading रहेगा within a day, ठीक है। Then we have block deal. So block deal क्या होता है, when a very large value order has been placed, that is known as a block deal, ठीक है। मतलब एक पूरा block of shares is being bought, ठीक है। And this is generally done by QIBs, that is qualified institutional buyers, या institutional investors such as वही म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब, ठीक है। तो ब्लॉक डील इज अ वेरी लार्ज वैल्यू ऑर्डर। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। सो इसमें क्या रहेगा, द इन्वेस्टर विल डू ऑपोजिट ऑफ व्हाट एवरीवन एल्स इज डूइंग। तो कॉन्ट्राडिक्टरी टू एवरीथिंग, टू व्हाट एवरीथिंग एल्स इज, एवरीवन, contradictory to whatever everything everyone else is doing, ठीक है। contradictory trading, ठीक है। तो एग्जाम्पल कोरोना में इफ एवरीवन वाज बाइंग फार्मा शेयर्स एंड इग्नोरिंग पीवीआर सिनेमा शेयर्स, देन कॉन्ट्रा ट्रेडर विल बिगिन इन पीवीआर सिनेमा शेयर्स, ठीक है। तो दे विल बी डूइंग एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ व्हाट एवरीथिंग एवरीवन एल्स इज डूइंग, ठीक है। नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट ट्रेडर टाइप्स। तो देर आर रिटेल वर्सेस प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स, है ना। तो रिटेल ट्रेडर्स क्या रहेंगे, देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट, और ठीक है, म्यूचुअल फंड रिटेल ट्रेडर्स और प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स में डिफरेंस देख लेते हैं। सो रिटेल ट्रेडर्स का मेन क्या ऑब्जेक्टिव रहता है, प्रॉफिट। तो रिटेल ट्रेडर्स आर पीपल लाइक यू एंड मी, मतलब सिंगल पर्सन या एक या दो लोग, they are trading, then that is known as retail trading. म्यूचुअल फंड में क्या होता है, कमीशन मिलता है, जो देर आर एक्सपर्ट्स हु आर मैनेजिंग लार्ज पोर्टफोलियोज, ठीक है, दे विल बी अर्निंग एन कमीशन इन केस देयर इज अ प्रॉफिट और समथिंग। नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स, अगेन दे ऑल्सो वर्क फॉर प्रॉफिट। फिर कैपिटल किसका होता है रिटेल ट्रेडिंग में, सेल्फ का प्रॉफिट कैपिटल रहता है, अपना खुद का पैसा लगा रहे होते हैं। म्यूचुअल फंड्स में देयर इज अ पूल ऑफ पर्सन्स हु हैव पूल्ड देयर मनी एंड उसका पैसा विल बी अप्लाइड इन द यूज्ड इन द स्टॉक मार्केट बाय अ एक्सपर्ट और अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, ठीक है। तो क्लाइंट्स का पैसा रहेगा।
and proprietary traders will also be using their own money. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर डूइंग इट इन अ सोलो मोड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, सो फॉर एग्जाम्पल you start trading yourself, ठीक है, that will come in retail trading. Now if we talk about mutual funds, तो जैसे टाटा का म्यूचुअल फंड है, बिरला म्यूचुअल फंड है, those things if you invest in that will come under mutual fund. Thirdly है proprietary traders. So examples of these are JP Capital, Edelweiss Capital, है ना? They are registered as a company and doing it in a systematic manner with large number of employees and large amount of money. ठीक है, तो even though it is their own money, they'll be earning a large amount of profit because of the scale involved. ठीक है, so just let me check once. Proprietary. So वही दिया है कि proprietary trader में a lot of money is used. एक कोई भी कंपनी रहेगी, they will be having a lot of money and they will be trading in the stock market for their own profits. ठीक है, now we'll be looking at Sensex and other notable indices. So first of all, we are looking at the major stock market indices which are present. So first one is Sensex or sensitive index. ये क्या होता है? ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का रहता है, इंडेक्स रहता है. इट इज़ बेस्ड ऑन द वेटेड एवरेज ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट. ठीक है, सो दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट. ठीक है, कैपिटलाइजेशन कितना है? 30 सिलेक्टेड कंपनीज का है इस केस में, सेंसेक्स में. ठीक है, देन वी हैव निफ्टी. निफ्टी इज NSE's index and it comprises primarily of 50 companies. ठीक है, और फिर निकाय है, दैट इज टोक्यो स्टॉक एक्सचेंजेस इंडेक्स एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ 225 कंपनीज. ठीक है, तो इसका FFMC का फुल फॉर्म क्या है? फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन. कितने लोग कंपनीज का लिया है इनमें? सेंसेक्स में लिया है 30 कंट्रीज का, देन कंपनीज का निफ्टी में 50 कंपनीज का एंड निकाय में 225. सो हाउ डू वी लर्न दिस? देखो, दिस इज क्वाइट सिंपल. सेंसेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, बॉम्बे का जो बी है उसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये 3 जैसा लग रहा है, सो 30 कंपनीज. ठीक है, नाउ निफ्टी राइम्स विद 50. ठीक है, तो वो हो जाएगा कि 50 कंपनीज का FFMC लिया है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन. नेक्स्ट, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में कितने लिए हैं? 225. जस्ट ट्राई टू लर्न दिस फिगर एज इट इज़. ठीक है, और इनके स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या, इनका जो इंडेक्स है उनका नाम क्या है? निकाय. ठीक है, नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ कोरोना. डू पार्डन माई प्रोनाउंसिएशन, आई डू नॉट एग्जैक्टली नो व्हाट इज दिस नोन एज. ठीक है, तो वो देख लेना आप. अभी देख लेते हैं इम्पैक्ट ऑफ कोरोना. दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस के लिए वी विल सी के शेयर मार्केट में ड्यूरिंग कोरोना व्हाट हैड हैपेंड. ठीक है, सो 2020 में लॉकडाउन लगा था, है ना? सो देयर वाज अ लॉट ऑफ पैनिक इन द मार्केट एंड दिस वाज लेटर फॉलोड बाय रिकवरी ड्यू टू चीप लोन्स. वर्क फ्रॉम गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड गिविंग, मतलब they had come up with the Atmanirbhar program wherein the loan tenures were increased और काफ़ी सारी चीज़ें करी थी. cheap loans were provided, ये सब चीज़ें हुई थी and there were loan moratoriums also. ठीक है, due to all of this there was a recovery in the economy. ठीक है, so social media influencers also fueled investments. In 2022-23 India market was volatile due to foreign investor exits.
ठीक है, a lot of foreign investors had exited Indian markets. Moreover, इन्होंने क्यों एग्जिट करा था? बिकॉज द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट had started offering better interest rates or something like that. ऐसे कुछ हुआ था. That is why they started exiting the Indian market and they instead invested in US के gilt edged bonds. ठीक है. Then we have Russia Ukraine war had happened. ठीक है, इन्फ्लेशन हुआ था and all of these reasons made the Indian market quite volatile during 2022-23. Now, in 2024, India became the fourth largest equity market in the world, driven by stricter Chinese regulations, a stable political environment, and stronger GDP growth. So, this is what you need to remember. Okay, 2024 में India had become the fourth largest equity market. ठीक है, तो 2024 में फोर्थ लार्जेस्ट हो गया. ठीक है, सो दैट इज हाउ यू कैन लिंक एंड रिमेंबर दिस. नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट सर्टन मार्केट थ्योरीज. तो देखो इसमें है देर इज एन एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस और थ्योरी. इसमें क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट्स आर कंसिडर्ड टू बी एफिशिएंट in processing information and pricing securities. ठीक है, so one investor cannot always keep earning more profits than the average trend in the market. तो ये hypothesis है. However, some experts disagree with it. इसमें वही दिया है कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं दे आर एवर चेंजिंग, है ना, और therefore only one investor cannot always keep earning more profits. The profits will over time get distributed amongst different investors. ठीक है, तो जितना एवरेज ट्रेंड है उससे ज़्यादा प्रॉफिट कोई एक इन्वेस्टर को, इट इज़ वेरी अनलाइकली फॉर दैट पर्सन टू अर्न. ठीक है, नेक्स्ट है रैंडम वॉक थ्योरी. इसमें है द शेयर प्राइसेस मूव अनप्रिडिक्टेबली, therefore a company's past share prices or charts should not be used to predict its future prices. So it is impossible to beat or defeat the share market. ठीक है, तो ये है कि पूरा रैंडमनेस है. एज द नेम सजेस्ट्स देयर इज अ लॉट ऑफ रैंडमनेस इन दी शेयर मार्केट. ठीक है, तो नो प्रिडिक्शंस एज सच कुड बी मेड हियर. ठीक है, और फर्स्ट वाले में क्या था? एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस और थ्योरी, according to which the financial markets are very efficient and only one investor cannot keep earning a lot of profits. ठीक है, so the names are quite self-explanatory themselves. Now we'll be looking at alpha and beta values. So देखो क्या होता है? These are generally used for monitoring price volatility or risks of an asset. ठीक है, तो इसमें अगर if the beta value is greater than 1, then देखो पहले बीटा इज ग्रेटर देन 1 से पहले वील जस्ट सी कि अल्फा और बीटा का मीनिंग क्या होता है. ठीक है, सो जो बीटा वैल्यू है इट रेफर्स टू, आई जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर. बीटा वैल्यू basically shows it, or it measures how much an investment's price, या तो हाँ जो भी स्पेसिफिक स्टॉक है उसका प्राइस, हाउ मच stocks price moves compared with the broader market. Broader market. ठीक है,
तो जो बेसिकली मेजर्स के जो स्टॉक का प्राइस है, हाउ डज इट मूव अकॉर्डिंग टू द या रिलेटिव टू द ब्रॉडर मार्केट। ठीक है, और अल्फा वैल्यू का मतलब रहता है कि हाउ एन इन्वेस्टमेंट और अ स्टॉक, हाउ एन इन्वेस्टमेंट performs relative to its benchmark, to a given benchmark, its name to any benchmark। ठीक है, so that is what alpha and beta value means। तो बीटा वैल्यू में what do you need to remember, that बीटा मतलब बी से ब्रॉडर मार्केट, so ब्रॉडर मार्केट के हिसाब से we'll compare, whereas alpha a we'll be comparing it to a benchmark, तो a से a benchmark कर लो। ठीक है, so beta means, फिर से I'll tell you, beta is um, B stands for broader market। ठीक है, एंड ए जो है अल्फा स्टैंड्स फॉर अ बेंचमार्क। ठीक है, यहाँ पे वेट, लेट मी राइट इट डाउन हियर, अल्फा स्टैंड्स फॉर अ बेंचमार्क। ठीक है, नाउ वी लुक एट द बीटा वैल्यूज एंड देयर करस्पॉन्डिंग मीनिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ द बीटा वैल्यू इज ग्रेटर दैन 1, देन दैट मीन्स कि जो कंपनी का शेयर है इट इज़ मूविंग फास्टर दैन द शेयर मार्केट इन बोथ द डायरेक्शंस। ठीक है, और हाई रिवॉर्ड हाई रिस्क का सिनारियो रहेगा, इफ़ द सेंसेक्स मूव्स अपवर्ड्स एट 1x स्पीड, द कंपनी विल बी मूविंग परहैप्स एट 1.5x स्पीड। ठीक है, और हाई रिस्क रहेगा कि इफ़ इट इज़ फॉलिंग एट 1x स्पीड देन द कंपनी विल ऑल्सो फॉल एट 1.5x स्पीड। ठीक है, तो इसमें जो जनरली टेक कंपनीज होते हैं, स्टार्टअप स्मॉल कैप कंपनीज, दे आर द वंस हु शो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट वी हैव बीटा इज स्मॉलर दैन 1 अगर हो, देन दिस कंपनी विल मूव स्लोअर दैन द सेंसेक्स। ठीक है, सो लो रिस्क रहेगा, लो रिटर्न रहेगा, अनलाइक द ऊपर वाला सिनारियो वेर इन देर वॉज अ सिनारियो ऑफ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है बीटा इज इक्वल टू 1, हियर द कंपनी शेयर मूव्स पैरेलल टू द सेंसेक्स। ठीक है, पैरेलल टू सेंसेक्स, स्लोअर दैन सेंसेक्स एंड moves faster than share market। Then we have beta is equal to 0, so this is when the share is it does not correlate with the market at all। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मोनालिसा की पेंटिंग है, उसका जो भी वैल्यूएशन है इट विल चेंज इंडिपेंडेंटली ऑफ सेंसेक्स मूवमेंट्स, है ना, सो दैट विल बी अ केस वेयर बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो देर इज नो कोरिलेशन विद द मार्केट इन दिस केस। नेक्स्ट है बीटा लेस दैन 0, इसमें होगा व्हेन इट इज नेगेटिवली कोरिलेटेड विद द मार्केट, मतलब कि दिस एसेट विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सेंसेक्स। सो फॉर एग्जांपल, इफ सेंसेक्स गोज अप, जिससे बॉन्ड और गोल्ड के केसेस में होता है, इफ द सेंसेक्स गोज अप देन पीपल विल शिफ्ट मनी फ्रॉम गोल्ड और बॉन्ड्स टू शेयर्स। ठीक है, क्या होगा कि देखो शेयर मार्केट इज गोइंग अप, तो पीपल विल रादर इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट इंस्टेड ऑफ गोल्ड बिकॉज दे विल गेट हायर रिटर्न इन दिस केस। ठीक है, तो ऑपोजिट चीज़ हो रही है, दैट इज बीटा इज लेस दैन 0। ठीक है, हाँ, बस इतना ही है इसमें, दिस मच यू शुड बी नोइंग, दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट अल्फा वाला देख लेते हैं। द इंडिकेटर इज यूज टू मेनली कंपेयर अ म्यूचुअल फंड और अ हेज फंड मैनेजर्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ बेंचमार्क। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ अल्फा इज ग्रेटर दैन 0, देन क्या होगा, the this means that the mutual fund is giving better profit than Sensex। ठीक है, एग्जाम्पल, if the HDFC mutual fund has 2% alpha, that means that when Sensex has claimed 10%, then HDFC mutual fund is giving around 12% return। ठीक है, now alpha अगर 0 है, then that means that
fund is performing same as the Sensex. ठीक है, so both these terms are quite important, beta and alpha. ठीक है, फिर अगर alpha is smaller than 0, then it means that the mutual fund is giving lesser returns than Sensex. ठीक है, lesser returns दे रहा है. ठीक है, now we look at the similarity or difference between alpha and beta. So alpha को क्या use करते हैं? It is primarily used to compare performance of mutual funds. ठीक है, and beta को किस लिए use करते हैं? It is mainly used to find volatility or risk of a share. ठीक है, तो अल्फा देखो, इसको लर्न कैसे करेंगे हम? म्यूचुअल फंड्स वगैरह में देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व. एक सेकेंड, म्यूचुअल फंड में लॉट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व. ठीक है, देयरफॉर उसको हम अल्फा बोलेंगे. अल्फा मतलब जो बहुत बहुत सारे पैसे हैं और वेरी नाइस, तो अल्फा. ठीक है, अल्फा. एंड रिटेल इन्वेस्टर्स और नॉर्मल शेयर्स दे आर कंसिडर्ड बीटा. ठीक है, बीटा विल बी नॉर्मल जो शेयर्स का वोलेटिलिटी है उसको चेक करने के लिए. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो क्वाइट इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एनालिसिस, फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस. सो देखो, ये these two terms are generally used to refer to the method of analysis which is used before buying a share. ठीक है, तो क्या करते हैं जो अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं? दे विल लुक एट अ कंपनी एंड इट्स शेयर्स, और उसका फिर या तो फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे या टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, या बोथ ऑफ देम विल बी डन. तो इससे दे विल कम टू नो कि वेदर दे शुड बाय दैट शेयर और नॉट. सो दे विल बी मेकिंग अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन. ठीक है, ऐसे कुछ भी बेट टाइप नहीं लगाएंगे. दे विल बी मेकिंग अ वेरी इन्फॉर्म्ड डिसीजन बेस्ड अपॉन फैक्ट्स. ठीक है, so there are two methods of analysis. One is fundamental analysis and the other one is technical analysis. So fundamental analysis में क्या होगा? The investor will be studying the company's profit, loss, balance sheet, etc. जो भी कंपनी है जिसकी शेयर ले रहे हैं उसका सारा information will be studied, and that will be known as a fundamental analysis. Whereas in the case of technical analysis क्या रहेगा? The investor will be studying the overall जो मार्केट है उसको देखेगा वो, और मार्केट सेंटिमेंट जो भी चल रहा है कि लोग खरीद रहे हैं कि बेच रहे हैं, उसके हिसाब से दे विल बी मेकिंग अ डिसीजन. ठीक है, सो क्या होगा? शेयर प्राइस रिलेटेड चार्ट्स, ग्राफ्स एंड मैथमेटिकल इंडिकेटर्स विल बी यूज्ड. सिंपल मूविंग, ये सब का मतलब क्या है? दे विल बी यूज ट्राइंग टू डिटरमाइन द मार्केट सेंटिमेंट. मतलब कि यहाँ पे जिस कंपनी का शेयर ले रहे हैं उसको देख रहे हैं, वेराज इसमें केस में मार्केट का जो सेंटिमेंट है उसको स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, कि जो मार्केट सेंटिमेंट इन द सेंस कि जो लोग हैं, आर दे इंटरेस्टेड इन बाइंग स्टफ और आर दे इंटरेस्टेड इन सेलिंग ऑफ स्टफ शेयर्स. ठीक है, उसके बेसिस पे कि फॉर एग्जांपल उनको दिख रहा है कि सब लोग खरीदे जा रहे हैं शेयर्स, दे विल ऑल्सो बाय द शेयर्स एंड दस अर्न ए प्रॉफिट. ठीक है, सो दे विल बी लुकिंग एट टाइम चार्ट्स, है ना, कि कितने टाइम में कितना बढ़ते जा रहा है, ये सब देखेंगे. देन सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ शेयर प्राइसेस देखेंगे. फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, स्टोकास्टिक इंडेक्स, ऑसिलेटर, ये सब चीज़ें दे विल बी डूइंग, है ना. these names are not very important, just look at them once कि moving average, convergence, divergence, ये सब होता है, not important from the exam point of view. नेक्स्ट वी हैव कि ये सूटेबल किसके लिए है. सो फंडामेंटल एनालिसिस इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स सिंस दे विल बी यूज पुटिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन स्टडिंग दैट स्टॉक. ठीक है, कंपनी का स्टॉक. whereas when it comes to technical analysis it is generally used by either swing traders or intraday traders. ठीक है, जो who sell and buy within a single day
or a swing trader who buys or sells within a few days, है ना. तो इन दोनों के लिए इट इज़ बेटर टू डू टेक्निकल एनालिसिस बिकॉज इट इज़ अ क्विकर जॉब, है ना. और उनको दे डू नॉट हैव टू बाय द स्टॉक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो दे डू नॉट रिक्वायर फंडामेंटल एनालिसिस. फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कि इन डेप्थ स्टडी ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल्स, है ना. दैट हैज़ टू बी डन ओनली इफ यू इंटेंड टू इन्वेस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ठीक है. नेक्स्ट है डीमैट पोर्टफोलियो, मीनिंग टाइप्स एंड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन. सो पोर्टफोलियो मीन्स द कलेक्शन ऑफ एसेट्स हेल्ड बाय एन इन्वेस्टर. ठीक है. सो इन फाइनेंशियल मार्केट्स पोर्टफोलियो मीन्स द लिस्ट ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स विच यू आर कीपिंग इन योर डीमैट अकाउंट. सो पोर्टफोलियो वही कि आपका जितना भी एसेट्स हैं वो सब. ठीक है. तो बस you should know the definition. Next we'll be looking at SEBI, Securities and Exchanges Board of India. So SEBI क्या है? It is the main regulator for the financial markets in India. ठीक है. तो headquarter कहाँ पे है SEBI का? It is in Mumbai itself. Even RBI has its headquarter at Mumbai. ठीक है. Then formation कब हुआ था? It was formed in 1988 by an executive order, and in 1992 it became a statutory body. ठीक है. सो 1992 मतलब 1991 में पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट हैड कम टू पावर. सो द ईयर नेक्स्ट टू दैट मतलब कि एलपीजी रिफॉर्म्स भी तभी हुए थे, इफ़ यू माइट बी रिमेम्बरिंग, है ना. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स. ठीक है. उसके अगले साल में ही दिस वाज मेड अ स्टैट्यूटरी बॉडी. ठीक है. एंड 1988 में कौन सा गवर्नमेंट था? देयर वाज अ रिलेटिव इंस्टेबिलिटी ड्यूरिंग 1988. तो दो तीन गवर्नमेंट्स के बीच में देयर वाज मतलब एक एक साल के लिए बनी थी. ठीक है. तो वैसे करके यू कैन लिंक दिस एंड रिमेंबर इट इन दिस मैनर. ठीक है. नेक्स्ट है पावर्स. क्या क्या है इनके पास में? इट हैज़ पावर्स फॉर ऑफ सर्च एंड सीजर, प्रॉपर्टी अटैचमेंट, अरेस्ट, डिटेंशन एट्सेट्रा. ठीक है. सेबी का जो बोर्ड है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंजेस बोर्ड का जो बोर्ड है, इट इज़ composed ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ चेयरमैन, है ना. चेयरमैन का टर्म कितना रहेगा? अप टू 5 years और 65 years of age, and the reappointment is also possible. Then there's an officer from RBI. There are 2 union government के officers and 5 government appointed members as well. ठीक है. एंड 2022 में माधवी पुरी बुच had become the first woman chairman, replacing Ajay Tyagi. Right now it is someone else. Wait, let me check. सेबी का चेयरमैन है तोहिन कांता पांडे. सो I'll just write it down here. तोहिन कांता पांडे. ठीक है. नाउ ही इज़ द चेयरमैन ऑफ सेबी. ठीक है. तो इसमें ये वी नीड टू रिमेंबर दैट देयर इज़ अ चेयरमैन 5 years 65 years. तो दिस विल बी easy to remember because most of the different constitutional as well as statutory posts have this टर्म. ठीक है. नाउ इसमें ये लर्न करना है कि एक तो आरबीआई का खुद का ही ऑफिसर रहेगा, देन देयर विल बी 2 यूनियन गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, एंड अपार्ट फ्रॉम देम देयर विल बी 5 government appointed members as well in the board of SEBI. ठीक है. नेक्स्ट है सेबी का. हम लोग वी लुक एट द रेगुलेटरी स्कोप ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिक्योरिटी का जो इशुएंस है, फॉर एग्जांपल आईपीओ, बॉन्ड्स, ईटीएफ, real estate investment trusts or infrastructure investment trust, all of these come under the Securities Contract Regulation Act of 1956. SCRA भी बोलते हैं इसको. ठीक है. सो दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. 1956 का जो एक्ट है ना, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, उसमें these things come.
So even though SEBI itself was established in 1988 and was received statutory backing in 1992, but still जो ये वाला चीज़ है सिक्योरिटीज़ का जो इशुएंस है इट वाज देयर सिंस 1956। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लर्न करेंगे 19 ठीक है, सो 1947 के अराउंड 9 years बाद, दैट इज आफ्टर इंडिपेंडेंस के 9 years लेटर इन 1956 दिस केम इनटू बीइंग। ठीक है, और इफ़ यू वांट यू कैन आल्सो लर्न इट दिस वे। देखो एसबीआई का 1955 में नेशनलाइजेशन हुआ था एज फार एज आई नो, है ना। सो अगले साल ही दिस एक्ट केम इनटू बीइंग, 1955 में एसबीआई हैड बीन नेशनलाइज्ड। ठीक है, और तभी उसी ड्यूरेशन में ये भी हो गया, अगले साल ही सेबी सेबी नहीं, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट आल्सो केम इनटू बीइंग। नेक्स्ट है प्लेसेस कहाँ हैं जहाँ पे सिक्योरिटीज़ रखते हैं, दे आर केप्ट इन डिपॉजिटरीज, स्टॉक्स एंड कमोडिटी एक्सचेंजेस। देन पर्सन्स कौन कौन रहते हैं इसमें, देयर इज इन्वेस्टर्स, ब्रोकर्स, फंड मैनेजर्स एंड पब्लिक कंपनीज। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में कितना रहता है, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस वो रेगुलेटरी स्कोप बता रहे हैं बेसिकली कि हाँ प्लेसेस कौन सी चीज जगहों को इट विल बी रेगुलेटिंग डिपॉजिटरीज, स्टॉक एक्सचेंजेस एंड कमोडिटी एक्सचेंजेस, एंड इट विल बी रेगुलेटिंग पर्सन्स के टर्म्स में इन्वेस्टर्स, ब्रोकर्स, फंड मैनेजर्स एंड पब्लिक कंपनीज एज वेल। ठीक है, उसके अलावा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं उनको भी इट विल बी रेगुलेटिंग, फॉर एग्जांपल चिट फंड वगैरह जो होते हैं ना, टू अवॉइड एनी चिट फंड स्कैम्स दे विल ऑल्सो बी रेगुलेटेड बाय सेबी। ठीक है, so SEBI will be regulating IPO, bond, ETF, all of these under the Securities Contracts Regulation Act of 1956. It will be regulating depository stocks and commodity exchanges. It will be regulating investors, brokers, fund managers and public companies as well, and collective investment schemes as well. ठीक है, फिर अपील और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के बारे में देखते हैं। सो इफ सेबी कम्स अप विद एन ऑर्डर so that the person or company which is affected by that order can go for an appeal to securities appellate tribunal। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद में दे कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, so the securities appellate tribunal also hears cases against IRDAI and PFRDA। ठीक है, this is very important, do remember this, even though IRDAI deals with insurance and PFRDA deals with pension, बट सिंस दी बोथ ऑफ देम जो इनका जो मनी है इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन कंपनीज का, दे जनरली इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज, दैट इज़ वाई इफ़ दे वांट टू गो फॉर अपील दे विल बी गोइंग टू SAT itself। ठीक है, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल में ही जाएंगे वो भी। ठीक है, देन वी हैव इन्वेस्टर कंप्लेंट पोर्टल। तो इन्वेस्टर कंप्लेंट पोर्टल का नाम क्या है, सेबी का स्कोर्स। ठीक है, देन वी हैव इन्वेस्टर अवेयरनेस इनिशिएटिव्स एज वेल। अभी इसका जो स्कोर्स है उसका, वेट लेट मी चेक द फुल फॉर्म, हाँ इसका फुल फॉर्म है, स्कोर्स स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडियाज complaints redress system, complaints redress system। ठीक है, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ स्कोर्स। नाउ इन्वेस्टर इनिशिएटिव अवेयरनेस के लिए देर आर वेरियस इनिशिएटिव्स,
फॉर एग्जाम्पल देयर इज द सारथी ऐप, है ना, एंड दैट इज प्राइमरली यूज्ड फॉर सेबीज इन्वेस्ट, इट इज सेबीज इन्वेस्टर एजुकेशन ऐप। ठीक है, ये सारथी मतलब, सारथी का मीनिंग क्या होता है, कंपेनियन। ठीक है, कंपेनियन, और किस एस से स्टार्ट होता है तो सेबी, सेबी कंपेनियन। वैसे लिंक करके यू कैन रिमेंबर दिस कि सारथी ऐप इज बेसिकली एन इन्वेस्टर एजुकेशन ऐप। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव SMARTS program. SMARTS program stands for Securities Market Trainers Program. ठीक है, it is basically an investor training initiative. ठीक है, सिक्योरिटीज मार्केट ट्रेनर्स प्रोग्राम, इन्वेस्टर्स को ट्रेन करने के लिए इनिशिएटिव। इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, द नेम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग एट सिक्योरिटीज मार्केट कोड। तो so security markets code was announced in budget 2021। तो वो क्या है बेसिकली, इट इज aiming to create a single law which will be merging all these four. So it will be merging the SEBI Act, Depositories Act of 1996, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट जो हमने पढ़ा था 1956 का, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट ऑफ 2007। ठीक है, तो इन चार को दे आर ट्राइंग टू मर्ज एंड कम अप विद द सिक्योरिटीज मार्केट कोड। जैसे लेबर कोड होता है ना, लेबर कोड कैसे बनता है, you combine all the labor laws and then you come up with the labor codes। ठीक है, 4 labor codes। Similarly they intend to combine a lot of laws like these 4 and then come up with the security markets code। ठीक है, so you need to remember कि कौन से laws को combine कर रहे हैं। So first of all SEBI Act 1992, we had already learned this। कैसे करा था लॉन्च, 1991 में एलपीजी रिफॉर्म हुए एंड 1992 में सेबी वॉज मेड अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, देन डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 का है, इसको वैसे ही लर्न कर लो। इफ़ यू माइट बी नोइंग 1996 में क्या हुआ था, देयर वाज अ लॉट ऑफ इंस्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट, सो द स्मॉलेस्ट गवर्नमेंट ऑफ 13 डेज वॉज फॉर्म्ड, है ना, बीजेपी की थी अंडर अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ यू कैन लिंक दिस एंड रिमेंबर कि डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 में, और 1996 में ये भी हुआ था। देन सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1956। सो अगेन वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस कि दिस वॉज 9 years आफ्टर इंडिपेंडेंस, और यू कैन ऑल्सो से कि कैसे करा था हमने लर्न, 1955 में SBI वॉज nationalized and the next year itself Securities Contracts Regulation Act came। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अभी रीसेंट तो नहीं बट स्टिल फेयरली रीसेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक्ट ऑफ 2007। सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक्ट में क्या रहेगा, इट विल बी रिलेटेड टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड इसको लर्न कैसे करेंगे, 2007, तो 7 से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अभी क्या चल रहा है 2026, इसको वैसे ही लर्न करने का ट्राई करना, बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू दैट देन 2026 से 20 साल पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए देयर वाज एन एक्ट विच वाज इनएक्टेड। ठीक है, 2026 से 20 साल नहीं, मतलब 19 ईयर्स पहले। ठीक है, नाउ बेनिफिट्स क्या है सिक्योरिटीज़ मार्केट कोड का, इट विल सिंप्लीफाई द रेगुलेशंस, enhance investor protection and market transparency, strengthen enforcement against fraud and malpractices, and it will help in aligning with global best practices for financial markets। ठीक है, now we'll be looking at SEBI का investor charter। Investor charter, it is similar to a citizens charter, so you might have read about that in, किस में आता है ये, GS 4 में भी है, 3 में भी है। ठीक है, तो सिटीजन चार्टर के बारे में देख लेते हैं। सो सिटीजन चार्टर इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ, उसमें भी है ना, GS 2 गवर्नेंस पार्ट में भी रहेगा थोड़ा सा इसका। ठीक है, सो अ सिटीजन चार्टर इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ कमिटमेंट्स
मेड बाय अ गवर्नमेंट एजेंसी, डॉक्यूमेंट ऑफ कमिटमेंट्स होता है, मेड बाय अ गवर्नमेंट एजेंसी टू द सिटीजन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड टू देम। सो एग्जाम्पल, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो यू कैन अप्रोच दिस पर्सन विद इन दिस मच नंबर ऑफ डेज, और ये सब दिया रहता है उसमें। ठीक है, सो दिस इज अ नॉर्मल डेफिनेशन, यू माइट बी नोइंग अबाउट दिस ऑलरेडी। नेक्स्ट है सेबी रिफॉर्म्स टू बूस्ट इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। So the first reform which was brought about was the initiative for a circuit breaker. तो circuit breaker क्या होता है? SEBI had introduced circuit breaker system wherein if fluctuation in share prices is more than X percent than the previous day, then the stock exchange must stop trading for 5 minutes. मतलब क्या है ये, जो excessive वो करते हैं ना, market manipulation by buying a lot of stocks in a very short amount of time, और उससे they will be manipulating the market prices, और पूरा स्कैम वगैरह जो भी चलता है, to avoid that this thing has been brought. So सर्किट ब्रेकर सिस्टम में होगा कि अगर शेयर प्राइसेस किसी भी कंपनी के, if they fluctuate more than X percent from the previous day, then the stock exchange will stop trading for a specified amount of time. ठीक है, तो ये मार्केट क्रैश करने से बचाता है, या फिर वो भी वही सब मार्केट क्रैश या एक्सेसिव इन्फ्लेशन, इन सब चीज़ों से बचाएगा। ठीक है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट वी हैव T+1 day सेटलमेंट इंस्टेड ऑफ T+2 day सेटलमेंट्स। सो बदला सिस्टम और रोलिंग सेटलमेंट का देख लेते हैं। बदला सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द कैरी फॉरवर्ड सिस्टम। ठीक है, इस इट इज़ अलाउड फॉर बाइंग शेयर्स विद बोरोड मनी एंड पोस्टपोनिंग सेटलमेंट अप टू 72 days। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द शेयर्स विल बी बॉट विद दिस मनी, बोरोड मनी। ठीक है, सेकेंडली एक और क्या गलत चीज़ हो रही है इसमें, द सेटलमेंट विल टेक अप टू 72 days, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर मार्केट मैनिपुलेशन। ठीक है, अगर 72 days तक सेटलमेंट ही नहीं हो रहा है, इट डज नॉट शो ऑन द मार्केट कि कितना ट्रेड हुआ है, सो इट विल result in a lot of market manipulation and other scams also. ठीक है, so that is why in 2001 the badla system was banned by SEBI, and they introduced the T+2 rolling settlement system. That means कि जो ट्रेड है इट शुड बी सेटल्ड विद इन 2 days। ठीक है, तो 2001 में लाए थे कि बस 2 दिन में द ट्रेड शुड बी सेटल्ड, नॉट इन 72 days। ठीक है, then afterwards in 2022 T+1 settlement was introduced, that within 1 day itself the trade has to be settled। ठीक है, and this was aimed at faster transactions। ठीक है, उसके बाद में then we also have T+1 and T+0 hour settlements also now। ठीक है, इसमें क्या होगा, T+1 hour में होगा कि within 1 hour the payment delivery is concluded। ठीक है, ये this was aimed to be launched from March 2024। एंड T+0 hour में क्या होगा, इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट इलीगल ट्रेडिंग और डब्बा ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, फ्रंट रनिंग, ये सब। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैल प्रैक्टिसेस विच एग्जिस्ट इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है, सो सबसे पहले क्या है, डब्बा ट्रेडिंग, ऑल्सो नोन एज बकेटिंग और बॉक्स ट्रेडिंग। तो इसमें क्या रहेगा, unofficial trading होगा outside the stock exchanges, and thus it is prone to scams and tax evasion। ठीक है, and that is why SEBI had declared it illegal। So as the name suggests, डब्बा trading मतलब it is not happening in the stock exchange, it is happening outside the stock exchange। ठीक है, तो वहाँ पे बाहर ही they will be making unofficial trades, and thus it is prone to a lot of scams and tax evasion। नेक्स्ट है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब कि यूजिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी टू बेनिफिट। ठीक है, टू
for personal stock trading to make unfair gains. For example, again, this is also illegal. For example, someone works in say जियो में काम करता है, ठीक है, जियो करके कंपनी में काम कर रहा है वो, एंड ही कम्स टू नो कि जियो और डिज्नी हॉटस्टार इज मर्जिंग, है ना। तो वो ये इन्फॉर्मेशन उसके पास है, वैसे मार्केट में इन्फॉर्मेशन नहीं है, दिस इज़ अ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन विच दिस पर्सन हैज़। सो व्हाट डज ही डू, ही बाय द स्टॉक्स ऑफ डिज्नी हॉटस्टार या जो भी करेगा, सो दैट ही विल बी अर्निंग unfair gains due to this confidential information which he had. ठीक है, this is known as insider trading and this has been termed as illegal by SEBI. Next we have front running. Front running में क्या है, the brokers or the fund managers will buy stocks in advance before a large institutional purchase is about to happen. ठीक है, लार्ज इंस्टीट्यूशनल परचेज मतलब कोई क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर कोई बाय करने वाला है, उससे पहले ही दे विल गेट सम इंफॉर्मेशन कि जैसे कोई HDFC म्यूचुअल फंड है, दे आर गोइंग टू मेक अ ब्लॉक डील एंड दे आर गोइंग टू बाय अ लॉट ऑफ स्टफ फ्रॉम शेयर्स ऑफ दिस कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी। ठीक है, तो व्हाट विल दे डू, उनको ऐसे कहीं से इंफॉर्मेशन आ गई, देन दे विल बाय अ नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ दिस कंपनी, ठीक है, और उस कंपनी के काफ़ी सारे शेयर्स खरीद के, देन वंस द QIB बाइज अ ब्लॉक डील, ही मेक्स अ ब्लॉक डील, देन दे विल गेन अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, बिकॉज overall market sentiment will become positive for that particular company, so they'll gain a lot of profit that way. So this is again banned by SEBI. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड IPF भी बोलते हैं। इट इज़ मैंडेटेड बाय सेबी फॉर स्टॉक एंड कमोडिटी एक्सचेंजेस। ठीक है, इट कवर्स नॉन स्पेक्यूलेटिव लॉसेस एंड इट प्रमोट्स इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस। मैक्सिमम प्रोटेक्शन पर इन्वेस्टर कितना है, अराउंड 25 लाख रुपीज़। तो एज द नेम सजेस्ट, इट इज़ एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द इन्वेस्टर्स, है ना, फ्रॉम स्कैम्स और अदर थिंग्स। ठीक है, सो नॉन स्पेक्यूलेटिव लॉसेस कोई करेगा कवर, और कोई भी जैसे ऐसा हुआ कि शेयर विच उसने बाई तो कर लिया शेयर, बट इट वॉज नॉट डिलीवर्ड टू हिम बिकॉज ऑफ सम लीगल डिस्प्यूट, सो इन दैट केस that person can avail the benefits of the investor protection fund। ठीक है, और कितना ये दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट दैट maximum protection per investor for the IPF fund is around 25 lakhs। वैसे शायद अभी 35 lakhs होगा। अच्छा, आई जस्ट टेल यू क्या है। This is different for different stock exchanges। NSE में it is around 35 lakhs rupees, 35 lakhs का है। Then when it comes to BSE, उसमें 25 lakhs के आसपास का है लिमिट। ठीक है, एंड देन लास्ट क्या रहेगा, MSC जो होता है, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, उसमें अराउंड 2 लाख का है। सो जस्ट डू दीज टू आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो ये द लिमिट वेरीज फ्रॉम exchanges to exchanges। ठीक है, नेक्स्ट वील लुक एट सेटलमेंट गारंटी फंड। सो सेटलमेंट गारंटी फंड क्या है, it is similar to an in the investor protection fund। So only stock exchanges, clearing corporations and brokers are required to buy this। ठीक है, so it ensures that a settlement is done and in case a settlement is not done, उसमें settlement guarantee fund में से the person or the investor will be getting their money back। ठीक है, next we look at server crash protection।
सो क्या होता है कि जो सर्वर होता है स्टॉक एक्सचेंजेस पे, इट माइट क्रैश सम टाइम, ठीक है। तो उसके लिए देयर सम प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड। सो लामा जो है आईटी मॉनिटरिंग सिस्टम या फ्रेमवर्क है। द लामा सिस्टम हेल्प स्टॉक एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज एट्सेट्रा टू चेक देयर आईटी सिस्टम्स इंटेग्रिटी ऑन रियल टाइम बेसिस। ठीक है, लामा का फुल फॉर्म क्या है? लॉग एनालिटिक्स एंड मॉनिटरिंग एप्लीकेशन। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन IRRA पोर्टल करके एक होता है, दैट इज़ इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट विल act as a safety net for investors during technical glitches or service errors। ठीक है, तो it will help investor to cancel or close the trade to prevent their money, to protect their money during service server errors। ठीक है, और इट हैज़ बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस लाइक BSE, NSE, NCD, DEX, MCX एंड मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, सब ने जॉइंटली डेवलप किया है। इट इज़ इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस wherein investors can cancel or close their trades to protect their money during a server error। ठीक है, और लामा जो सिस्टम है, इट इज़ बेसिकली एन IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मॉनिटरिंग सिस्टम wherein the IT सिस्टम का जो इंटेग्रिटी, इट इज़ मॉनिटर्ड ऑन अ रियल टाइम बेसिस। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? लॉग एनालिटिक्स एंड मॉनिटरिंग एप्लीकेशन। नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट शॉर्ट सेलिंग, दैट मीन्स मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम अ फॉलिंग शेयर प्राइस। ठीक है, इसमें क्या होता है? Investor will be borrowing a share and then selling them in the market and then buy that share later at a lower price to make a profit। तो इसको मैं I'll just explain it how this happens। तो suppose ये ग्राफ है the price of a share with time। ठीक है, ये प्राइस ऑफ दैट शेयर है और ये टाइम है। तो क्या दिख रहा है हमको कि ये फॉलिंग प्राइसेस हैं उस शेयर की। ठीक है, फॉलिंग प्राइसेस है तो यहाँ पे जितना भी प्राइस था वो कम होते जा रहा है। इस केस में इफ समवन wants to profit, then what will they do? They will go for short selling। ठीक है, तो क्या करेंगे वो लोग? सपोज ये है ए, इसको करना है शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमाने हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा? सबसे पहले ये बी को बोलेगा कि अच्छा, यू इवन दो ही डज नॉट हैव द शेयर ऑफ दिस कंपनी, सी कंपनी के शेयर्स हैं ये। even though A does not have the shares of the company C, still he'll make a promise to B के मैं आपको 10 शेयर ऑफ C I'll be giving। ठीक है, एंड देन इनसे वो पैसे ले लेगा। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग पैसे ले लेगा। तो कितना हुआ? यहाँ पे उसने एक डील करी इससे, यहाँ पे सपोज जितना भी प्राइस था, ठीक है, यहाँ पे एक्स प्राइस था, उसने पे डील करा कि मैं 10 शेयर आपको बेचूंगा एंड यू गिव मी द करस्पॉन्डिंग मनी। तो कितना हो जाएगा? 10x मनी मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी मेरे पास शेयर नहीं थे बट स्टिल आई मेड अ प्रॉमिस। ठीक है, फिर क्या करा? एट द एंड ऑफ द डे जब प्राइस यहाँ तक आ चुकी थी, यहाँ पे आ गई थी प्राइस, तब मैंने क्या करा? आई बॉट दीज शेयर्स फ्रॉम समवन एल्स। डी करके एक खड़ा था, उससे मैंने वाई प्राइस पे 10 शेयर खरीद लिए, सॉरी 10 बाई करके मैंने इसको पैसे दिया 10 बाई, एंड मैंने 10 सी खरीद लिए इससे। ठीक है, एंड देन दिस 10 सी आई सोल्ड टू बी एट 10x प्राइस। तो आप समझ रहे हो वाई इज स्मॉलर दैन एक्स, यहाँ दिख ही रहा है आपको वाई की प्राइस कम है। सपोज ये 5 रुपये का है, ये है हो गया 2 रुपये का शेयर, है ना। तो मैंने 2 रुपये के एट द एंड ऑफ द डे 10 शेयर खरीद लिए, तो कितना हो गया? 20 रुपीज़ के शेयर्स खरीद लिए मैंने, है ना। और बेचा कितने में? मैंने उसको पुराने प्राइस पे, जिस पे अग्रीमेंट करा था, दैट इज़ 5 रुपये पर शेयर, दैट बिकम्स 50। सो हाउ मच डू आई गेन? आई गेन्ड 30 रुपीज़ इन दिस प्रोसेस। ठीक है, तो इस मेथड से इवन ड्यूरिंग अ फॉलिंग मार्केट पीपल मेक मनी।
ठीक है। सो दिस इज हाउ हिंडन, आपने सुना होगा हिंडनबर्ग रिपोर्ट वगैरह, है ना। तो हिंडनबर्ग इंडल्जेस इन शॉर्ट सेलिंग। ठीक है। तो कभी भी किसी कंपनी के शेयर्स आर अबाउट टू क्रैश, दे विल बाय अ लॉट, मतलब वो दे इंडल्ज इन दिस शॉर्ट सेलिंग ऑपरेशंस। ठीक है, एंड देन मेक अ लॉट ऑफ मनी। सो इसमें वही दिया है कि investor will borrow shares and sell them in the market, then he'll buy them back later from another person at a lower price to make a profit. ठीक है। सो दिस इज वेरी कॉमन इन स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। नाउ वील लुक एट फिन इन्फ्लुएंसर्स, मतलब फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है। सो फिन इन्फ्लुएंसर इज एन इन्फ्लुएंसर हु गिव्स एडवाइस ऑन financial investments via social media. So sometimes they give a wrong advice as well. However, since they have a lot of um, मतलब उनको lot of people are listening to them, that is why क्या होगा, पूरा they, all the people who are listening to them will be at a disadvantage. ठीक है। Moreover, they might give a wrong advice on based of a share market scamster. ठीक है। So when this happens, SEBI punishes them. For example, कोई भी scamster रहेगा, वो ऐसे कोई भी शेल कंपनी बना देगा और उसको बोलेगा कि, किसी भी इन्फ्लुएंसर को बोलेगा कि मेरा शेयर्स बिकवाओ आप। ठीक है। तो what will this fin influencer do? He'll recommend these shares in his video. ठीक है, in his or her video. तो once he recommends these shares, everyone who's seeing the video will buy, everyone मतलब most of the people who are seeing this video for suggestions would buy these shares। ठीक है। और क्या होगा, ये फालतू सा जो भी कंपनी रहेगी शेल कंपनी के शेयर प्राइसेस विल हाई स्काई रॉकेट। ठीक है। एंड दस दिस इज हाउ स्कैम्स टेक प्लेस। ठीक है। सो टू अवॉइड दैट सेबी हैज ब्रॉट देम अंडर रेगुलेशन एज वेल। तो उनको पनिशमेंट करते हैं सेबी। ठीक है। नाउ वील बी लुकिंग एट ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। सो अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ट्रेडिंग करना है, देन वी हैव दिस प्लेटफॉर्म RDG बाय RBI। ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर्स RDG, that is retail direct gilt account, which has been created by RBI itself। ठीक है। इसमें क्या होगा, द रिटेल इन्वेस्टर्स कैन डायरेक्टली बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाया RBI's e-कुबेर प्लेटफॉर्म। ठीक है। एंड इट इज ओपन टू बोथ, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट इज ओपन टू बोथ NRIs as well as resident Indians, and investors can buy treasury bills, government securities, state development loans, sovereign gold bonds, etc. directly from RBI itself। ठीक है। and there's no application fee to open an RDG account, and RBI has also launched a mobile app for easier access or easier trading in this regard। ठीक है। बेनिफिट्स वही है कि एक तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो देयर इज़ वेरी लो रिस्क इन्वॉल्व, है ना। देन नो म्यूचुअल कमीशन और फीस विल बी इन्वॉल्व इन दिस केस, एंड इट विल इंक्रीज रिटेल पार्टिसिपेशन, दस स्ट्रेंथनिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग में RBI का नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग। तो इसमें क्या होगा, इट इज़ ओन्ड एंड रेगुलेटेड बाय RBI फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग। ठीक है। एंड इट इज़ मैनेज्ड बाय द क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस इन अ प्रीवियस वीडियो एज वेल। इसमें क्या होगा, वही टेलीफोनिक ट्रेडिंग का भी कंपोनेंट है, दैट इज बायर एंड सेलर कैन नेगोशिएट ओवर द फोन एंड रिपीट द डील टू NDS। ठीक है। ये वही गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ट्रेडिंग ही होगा इसके थ्रू। देन ओवर द काउंटर ट्रेडिंग कैन ऑल्सो बी डन, वेर इन द बायर एंड सेलर मीट फिजिकली एंड कंप्लीट द ट्रांजैक्शन। ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट NDS ऑर्डर मैचिंग का भी एक कंपोनेंट है, जिसमें एन इलेक्ट्रॉनिक और anonymous order driven trading system exists for government securities in the secondary market। ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ट्रेडिंग के लिए ही है ये NDS सिस्टम, दैट इज नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। तो नेगोशिएट करने के लिए
वही हमने वी हैड लर्नड इट दिस वे कि क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर मतलब सफाई करने के लिए नेगोशिएट करना पड़ता है हमको लोगों से, है ना, वैसे करके लर्न किया था, ठीक है, वैसे कर सकते हो। Then this has been founded by these companies, not very important. नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फंड्स, म्यूचुअल फंड फॉर आम आदमी। अच्छा, सो म्यूचुअल फंड्स के बारे में देख लेते हैं। सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट टेल यू द बेसिक आइडिया बिहाइंड म्यूचुअल फंड्स। इसमें क्या होता है, देयर विल बी अ पूल ऑफ सेविंग्स। सो जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे आप और हम, वील गिव आवर मनी एंड दिस मनी विल बी पुट इनटू अ पूल ऑफ मनी, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे लोग विल बी गिविंग मनी, ठीक है। नाउ in return for money they are given a certificate or something like that, जिसमें यूनिट्स मेंशनड होती है कि कितने यूनिट्स आर ओन्ड बाय समवन, ठीक है। सो इट विल बी करस्पॉन्डिंग टू द मनी इन्वेस्टेड बाय दैट पर्सन, ठीक है। फिर ये जो पूल ऑफ मनी है, इसमें द दिस विल बी मैनेज्ड बाय अ म्यूचुअल फंड मैनेजर, ठीक है, और सम एक्सपर्ट, ठीक है। और ये जो पूरा मनी है ना, इसको कौन, म्यूचुअल फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है ना। एंड व्हाट विल ही डू विद दिस मनी, ही विल इन्वेस्ट दिस मनी इनटू वेरियस सिक्योरिटीज, मतलब वो शेयर्स, बहुत सारे शेयर्स खरीद लेंगे वो ऑफ डिफरेंट कंपनीज। सो दिस विल बी एन एक्सपर्ट, सो ही और शी विल बी नोइंग कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, विच वन विल बी द मोस्ट बेनिफिशियल फॉर एवरीवन, ठीक है। एंड वंस दीज shares they increase in value or they provide dividends, then that dividend will be distributed amongst everyone, ठीक है। बस इतना ही होगा इसमें। फीस भी रहती है फॉर ज्वाइनिंग दिस म्यूचुअल फंड, देयर विल बी एन एंट्री लोड, ठीक है। देन देयर इज एन एग्जिट लोड फॉर withdrawing, and then there are also certain market risks, so this is not very important, बस ऐसे पता होना चाहिए कि there are certain market risks which are associated with mutual funds. then side pocketing का भी होता है, so SEBI's rule allows mutual funds to separate toxic assets from healthy ones in order to protect the investors, ठीक है। so this concept is known as side pocketing, ठीक है। Next, we look at hybrid mutual funds. So, क्या क्या होता है? There is an equity mutual fund which invests money primarily in equities only. फिर debt mutual fund होता है जिसमें the money is invested in bonds, government securities, treasury bills, etc. So both short term as well as long term bond instruments में the money will be invested, ठीक है। Then you also have hybrid mutual funds. Hybrid mutual funds में both shares as well as bonds में investment is done. Then we also have multi-asset mutual fund wherein shares, bond as well as gold में the investment is made. ठीक है. Now we look at two types of mutual funds: open-ended and closed-ended. So open-ended में क्या होता है? The size of the fund is unlimited. So everyone is welcome in the fund. Whereas closed-ended fund रहेगा, उसमें there will be a fixed size and more people cannot enter after the money is once filled. ठीक है. नेक्स्ट है client can subscribe whenever he wants. ओपन एंडेड में कभी भी there is no time limit as such, whereas in the case of close ended one there is a closing date involved, ठीक है। और maturity का क्या है, ओपन एंडेड में there is no maturity date as such, whereas in the case of close ended ones there is a fixed maturity period involved, ठीक है, 5 साल का। So next we look at mutual fund riskometer. तो उसमें क्या है, म्यूचुअल फंड कंपनीज मस्ट डिस्क्लोज
risk levels monthly via a digital dashboard called as riskometer. ठीक है, so they'll be disclosing their risk levels monthly, and the digital dashboard which is used for depicting this is known as the riskometer. ठीक है, next here there are six categories of risks. First of all, we have low risk, low to moderate, moderate, moderately high, high, very high. ठीक है, now this helps investors in choosing mutual funds based upon their risk appetite. ठीक है, now next thing which we'll be looking at is hedge funds. ठीक है, so hedge funds are basically kinds of mutual funds, but they are primarily for high net worth individual. HNI मतलब हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल. ठीक है, इनके लिए रहता है. इसमें क्या रहेगा, हेज फंड विल बी हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट. दैट मीन्स दे विल बी इन्वेस्टिंग इन जंक बॉन्ड्स. ठीक है, जंक बॉन्ड्स कौन से होते हैं, विच हैव वेरी लो क्रेडिट रेटिंग. So bonds of companies having very low credit rating, those are known as junk bonds. ठीक है, so in this case what happens is that there is a very high risk as well as high reward involved. So high risk में क्या रहेगा कि there may be a risk that the money will not be returned, and high reward will be there because the interest rate for such junk bonds is generally very high. ठीक है, so इसमें according to SEBI norms, the minimum investment for these hedge funds is 1 crore rupees per person. Next है जो hedge fund managers, and they use various strategies like arbitrage, leverage, short selling, futures and options trading, then derivatives trading. ठीक है, all of these are used by hedge fund managers to make money. ठीक है, and they maximize returns through their high risk strategies. ठीक है, next we'll be looking at REITs or INVITs. This stands for Real Estate Investment Trusts or Infrastructure Investment Trusts. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, these are similar to mutual funds but रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में. तो इसमें क्या होगा, पीपल विल बी इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स विच आर नियरिंग कंप्लीशन, एंड जो भी देखो वही रहेगा, एक पूल ऑफ मनी रहेगा एज वॉज द केस इन म्यूचुअल फंड्स. सो देयर इज़ अ पूल ऑफ मनी जिसमें बहुत सारे लोगों ने डाला है पैसा. ठीक है, दिस पूल ऑफ मनी वॉज यूज टू make or invest in a real estate project. रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में यूज़ किया था इसको. सो once this project comes into being and it starts earning money via rent or property sales, then क्या होगा, जो money which has been accrued from here, that money will be put back into this pool, और फिर people will be receiving the dividends for the same. ठीक है, सो सिमिलर टू म्यूचुअल फंड बट रियल एस्टेट सेक्टर में रहेगा. Similarly, we have infrastructure investment trusts as well. Same thing will be happening there also, बस यहाँ पे the thing which they will be investing in is infrastructure. So for example, road infrastructure या airport, highways, वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, और उनका जो टोल कलेक्शन या सर्विस फी होता है उसके थ्रू दे विल बी पेइंग डिविडेंड्स टू द इन्वेस्टर्स. ठीक है, तो इसमें यही होता है, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द सेम ऑफ दीज. ठीक है, नाउ हु कैन इन्वेस्ट इन, अच्छा, इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स में देखो 2 lakh is the minimum amount of money which can be invested, and whereas in the case of infrastructure investment trusts, nearly 10 lakh rupees is the minimum which is required to be invested.
ठीक है, दिस वाज रिड्यूस्ड बाय SEBI in 2019 and it has been reduced to 50,000 rupees for real estate investment trusts and 1 lakh rupees for infrastructure investment trusts. ठीक है, तो अगेन दिस मेट्रिक इज क्वाइट इम्पोर्टेंट. कैसे लर्न करेंगे? 50,000 रुपये में रियल एस्टेट. तो 50,000 तो आजकल द रेंट इज़ ऑल्सो वेरी हाई. देखो अगर बैंगलोर वगैरह में इफ़ यू look for a room or a decent living space, then the rent comes out to be more than 60,000 per month or so. ठीक है, तो इतना तो रेंट ही हो जाता है. तो उससे आप कर लो कि 50-60,000 रेंट और कितना रियल एस्टेट की बात हो रही है. देन इंफ्रास्ट्रक्चर 1 लाख रुपीज. सो इट इज़ डबल ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. ठीक है. Next, we'll be looking at the benefits. So this is not very important from the preliminary examination point of view, but still we'll just be looking at this. क्या दिया है? Developers get funds to complete stalled projects. ठीक है, तो जो भी stalled projects हैं उनको complete करने के लिए funds will be given. Then HNI investors get new investment opportunities as well. ठीक है, then they are listed on stock exchanges for easy buying and selling. And SEBI approved these in 2014. ठीक है. नेक्स्ट है सोवरेन वेल्थ फंड्स. डेफिनेशन क्या है? दीज आर स्टेट ओन्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स यूजिंग सरप्लस फंड्स फ्रॉम सेंट्रल बैंक्स, फाइनेंस मिनिस्ट्रीज एक्सेट्रा. ठीक है, तो सोवरेन वेल्थ फंड है. सोवरेन मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू द गवर्नमेंट रहेगा. ठीक है, सोवरेन मतलब सुप्रीम है ना. सो जनरली स्टेट ओन्ड फंड्स को ही सोवरेन फंड्स बोलते हैं. सो जो भी सरप्लस फंड बच जाता है सेंट्रल बैंक, फाइनेंस मिनिस्ट्रीज और इन सब जगहों पे, उन सब को मिला के दिस स्टेट ओन्ड इन्वेस्टमेंट फंड इज मेड. ठीक है. नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग एट द पर्पस. सो पर्पस ऑफ दिस फंड इज प्राइमरली इन्वेस्टमेंट. ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं अबू धाबी. हाँ, ये सब दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द सेम. अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी investing in Reliance Jio, then Singapore's GIC and Qatar Investment Authority, then National Investment and Infrastructure Fund. ठीक है. Then we have CPSE Exchange Traded Funds. इसमें क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन को देखते हैं. डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? व्हेन द गवर्नमेंट सेल्स शेयर्स बट रिटेन्स मोर देन 51% ओनरशिप, दैट इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट. ठीक है. So government is selling the shares and retaining more than 51% ownership. Then we also have government privatization. Privatization में क्या होगा? Government will reduce ownership to less than 51%. तो इसको बोलते हैं strategic disinvestment. ठीक है. So this is very important कि जो privatization को ही strategic disinvestment भी बोलते हैं. एंड डिसइन्वेस्टमेंट में ओनली मतलब थोड़ा बहुत ही करते हैं. दे रिटेन द 51% मेजॉरिटी, वेर एज इन प्राइवेटाइजेशन लेस दैन 51% ओनरशिप हो जाती है गवर्नमेंट की. ठीक है. प्रोसेस क्या है? गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस शेयर्स टू अ फंड मैनेजर. ठीक है, उनको दे देंगे फंड मैनेजर को अपने शेयर्स. देन this fund manager will create an ETF, that is exchange traded fund बना देंगे वो, and then he offers them to the public. ठीक है. Then the investors will receive dividends from the underlying central public sector enterprises and this can trade the ETFs on stock exchanges. ठीक है. तो exchange traded funds कौन बनाता है? फंड मैनेजर. And they'll be offering them to the public via a new fund offer. ठीक है.
and then these ETFs can further be traded on the stock exchange. Now we look at Bharat 22 exchange traded fund. इसमें क्या है that the government had disinvested shares from around 22 companies. So उसी का एक exchange traded fund बनाया known as Bharat 22. So this was managed by ICICI Prudential, or initially it had very low returns due to public sector banks and NPA issues, but um, बाद में it became better. Government offered ELSS like tax benefits to attract investors to this fund. ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो भी शेयर्स है कोई भी, जैसे PSU नंबर 1, PSU 2, PSU 3, ऐसे करके इनके जो भी शेयर्स रहेंगे ना, उन शेयर्स को एक they'll put them in one basket, and that basket will be known as exchange traded fund. ठीक है, तो इसके जो यूनिट्स हैं दैट विल बी सोल्ड टू इन्वेस्टर्स. ठीक है, एंड दीज इन्वेस्टर्स कैन फर्दर ट्रेड देम ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस. सो दिस इज द मेन आइडिया बिहाइंड दिस. ठीक है, नेक्स्ट we look at Bharat Bond Exchange Traded Fund. Now you need to remember that 22 companies were, वैसे तो इसमें ही पता चल रहा है कि भारत 22 मतलब there were 22 companies which were whose shares were present in this. Now, the other thing which you need to remember from here is that ICICI Prudential जो है ना, that is the one which is managing it. ठीक है, so that is also important here. नेक्स्ट ये भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो मैनेजर है वही ईडलवाइज एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड. मैच्योरिटी है 3 to 10 years. ठीक है, और यूनिट साइज 1000 यूनिट, शायद रुपीज़ का लिखा होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस. बॉन्ड्स फ्रॉम सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड सेंट्रल पब्लिक फाइनेंशियल intermediaries and other government organizations are involved in this, and it is primarily traded on the stock exchange. So this is not very important from the exam point of view. बस पता होना चाहिए कि भारत बॉन्ड ETF है वो कौन मैनेज करता है, ईडलवाइज, whereas Bharat 22 is being managed by ICICI. How do we learn this? देखो 22 मतलब 2 times, तो ICICI, तो यहाँ पे 2 टाइम IC है ना, तो वैसे करके लर्न कर लो 2 टाइम्स है ये भी. सो 22 में भी 2 इज 2 टाइम्स. ठीक है, वैसे करके यू कैन रिमेंबर दिस. और भारत बॉन्ड तो ईडल वाइज है ना, तो इसको कैसे लर्न करेंगे, वाइज पीपल विल बी इन्वेस्टिंग इन ईड भारत का बॉन्ड. ठीक है, वैसे करके यू कैन रिमेंबर दिस एज वेल. नेक्स्ट है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का जो ETF है, वील बी कंपेयरिंग दैट विद म्यूचुअल फंड्स. सो जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, दे आर देयर ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव इज गवर्नमेंट्स डिसइन्वेस्टमेंट और बोरोइंग. ठीक है, वेयर एज इन द केस ऑफ म्यूचुअल फंड द मेन आइडिया इज ऑब्जेक्टिव इज टू ensure that clients get returns for their investments. ठीक है, पोर्टफोलियो क्या रहता है इस केस में, देयर इज़ अ फिक्स पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ द शेयर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज विच द गवर्नमेंट हैज़ डिसइन्वेस्टेड इन. देन whereas in mutual fund they have a variable portfolio consisting of various diverse shares and bonds of different companies. ठीक है, fees is lower in the case of CPS, मतलब वो exchange traded fund, because ये गवर्नमेंट के शेयर्स होते हैं ना primarily, whereas in the case of mutual funds the fees is higher. Then management देख लेते हैं, there is passive management and index ETF क्या रहता है, it invests based upon an index, so passive management is being done here, whereas in the case of mutual funds active management is done by
म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, ठीक है। देन लिक्विडिटी कितना है, ईटीएफ का हायर लिक्विडिटी है बिकॉज गवर्नमेंट के शेयर्स हैं, है ना, सो देयर इज सम सिक्योरिटी टू इट, whereas in the case of mutual funds they have lower liquidity overall, ठीक है। नेक्स्ट, so now first we look at index exchange traded funds. So इनका passive management होता है, तो it invests mechanically based upon the index, ठीक है, and there's a lower fees since no as such expertise is required in this case, and the liquidity will be higher as well, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेंबर कि जो इंडेक्स बेस्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है उसमें मैकेनिकली इन्वेस्टमेंट अपने आप होते रहती है बेस्ड अपॉन द इंडेक्स, ठीक है। Next, we have Bitcoin ETF approved in USA and overseas ETF. So overseas exchange traded fund क्या है? वही exchange traded fund which has been issued by foreign governments, ठीक है। So the Securities and Exchanges Board of India had temporarily banned further investment by Indian mutual funds due to $1 billion limit being nearly reached to protect the Indian rupee. So this is not very important, ठीक है। इसको ऐसे you can just read it once or not an important news, ठीक है। Now we'll be looking at gold exchange traded funds. So what happens in this case is that the manager will be buying the buys the gold and then trades it as well, ठीक है। उसके बाद में they'll be returning the वही देखो इसमें ऐसे कुछ भी लिखा है। सो एक देयर विल बी एन ईटीएफ, यहाँ पे जो पूल्ड मनी है दैट विल बी पुट, ठीक है, एंड उससे गोल्ड विल बी बॉट। नाउ गोल्ड के प्राइसेस यूजुअली इंक्रीज, ठीक है, तो ओवर टाइम जितना भी इंक्रीज हुआ द रिटर्न्स विच हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस विल बी गिवन बैक टू द इन्वेस्टर्स, ठीक है। बस इतना ही हो रहा है इस केस में। एंड वन मोर थिंग दैट दे कैन बी ट्रेडेड ऑन दी स्टॉक एक्सचेंज एज वेल, ठीक है। सो बस that is all for this. Next, we will be looking at alternative investment funds. So, alternative investment funds के there are various categories that are present. So, for example, जो alternative investment fund category 1 है, then there is category 2 and there is also category 3. So, as the name suggests, it is an alternative investment, not a mainstream investment, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ए आई एफ कैटेगरी 1 के, दे जनरली हैव अ पॉजिटिव इन इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड द सेबी हैज रिलैक्स्ड नॉर्म्स ऑन इट। सो एग्जांपल्स क्या हैं इसके, देयर इज वेंचर कैपिटल, एंजल फंड्स, एसएमई फंड्स, ठीक है, ये सब दीज आर एग्जांपल्स ऑफ alternate investment funds. Then we have alternate investment fund category 2. This consists of private equity, debt funds, ये सब। Then alternative investment fund category 3, it consists of hedge funds, pipe funds, ठीक है, ये सब चीज़ें they'll be included in the alternative investment fund category 3. Now we'll be looking at forwards and futures contracts and options, ठीक है। So alternative investment funds हो गया ये category 1, category 2 and category 3 along with the examples। इसमें आज सच कुछ लर्न करने का तो है नहीं, बट यू जस्ट नीड टू नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, कि जो कैटेगरी 3 वाले ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, दोज आर द वंस विच हैव हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न रेशियो, ठीक है। सो दीज आर सिमिलर टू हेज फंड्स, है ना, तो वही हेज फंड्स हैं या पाइप फंड्स हैं, दी ऑल ऑफ दीज कम इन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 3, ठीक है। लेट मी जस्ट चेक वंस कि पाइप फंड को फुल फॉर्म क्या होता है। So pipe funds refer to private investment in public equity funds, ठीक है। I'll just write it down here, private investment
in public equity. ठीक है, these are known as pipe funds. This primarily involves the private investor purchasing shares of publicly traded companies directly, and that too at a discount to the market price. ठीक है, तो जो नॉर्मल जो एन एस सी या बी एस सी पे शेयर्स लिस्टेड हैं, they will be buying these, but they'll be buying these from a different channel. So they'll be buying these at a discount. ठीक है, मेजर डिस्काउंट पे they'll be buying this, and वही बस इतना ही रहेगा इसमें. ठीक है, so since they are buying it at a discount, so they'll be getting high returns for this. ठीक है, नेक्स्ट वही बस कैटेगरी थ्री का याद करो. थ्री के इसके ऐसे लर्न करना है कि इट इज़ द हाई रिस्क वन. थ्री इज जनरली कंसिडर्ड टू बी अनलकी, सो देयर फोर दिस इज अ हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट. ठीक है, नेक्स्ट है वही नाइन जो कैटेगरी टू है, विच it consists of examples which do not fall in either category 1 or category 3 either. ठीक है, now we'll be looking at forwards and futures contracts and options. So forward या future contract होता है. So it is basically an agreement to buy or sell at a future date at a pre-agreed price. ठीक है, and there is always a risk of non-compliance. So you need to remember the definition per se. That means that forward या future contract में क्या होगा? There will be an agreement wherein the buyer or the seller will agree to buy or sell at a future date. ठीक है, तो agreement है basically it is. ठीक है, however the price is also fixed, so the price will be pre-agreed. Now options में क्या होगा? Options refers to an insurance against contract risk. जैसे ऊपर contract बनाया है, so there you require an insurance against that. ठीक है, that is what option is all about. ठीक है, so there are primarily two types of options, call option and put option. ठीक है, हेजिंग क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स बाइंग ऑप्शंस इन ऑर्डर टू मिटिगेट लॉसेस. मतलब कि इंश्योरेंस टाइप की चीज़ कुछ भी बाय करना इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लॉसेस, दैट इज नोन एज हेजिंग. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट ओवर फाइनेंशियलाइजेशन एंड सैशेटाइजेशन. So over financialization refers to the excessive focus on financial markets over real economic activities, thus leading to instability. So as the name suggests, over financialization मतलब overuse of the financial market, मतलब excessive focus on the financial market and low focus on the real economic activities. ठीक है, इससे काफ़ी instability comes in the economy. ठीक है, नेक्स्ट है सैशेटाइजेशन. सैशेटाइजेशन में क्या होगा? It is packaging products in smaller affordable quantities in order to help reach low income consumers as well. ठीक है, तो जो लो इनकम कंज्यूमर्स होते हैं, जस्ट सो दैट दे आर एबल टू बाय दीज प्रोडक्ट्स, सैशेटाइजेशन इज डन. ठीक है, सो आई विल हाईलाइट दैट ऑल्सो. पैकेजिंग प्रोडक्ट्स इन स्मॉलर more affordable quantities to reach low income customers. ठीक है, सैशे बना देना, छोटा छोटा पैकेट बना देना किसी भी प्रोडक्ट का. ठीक है, नेक्स्ट है डेरिवेटिव्स एंड स्वैप्स. सो डेरिवेटिव्स क्या होता है? दे आर कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम अंडरलाइंग असेट्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल शेयर्स, contracts which derive value from underlying assets like shares, bonds, etc. ठीक है, and so they are often created through securitization. ठीक है, तो डेरिवेटिव मतलब दे डिराइव वैल्यू, द नेम इटसेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अगेन हियर. ठीक है, तो डेरिवेटिव मतलब कि क्या हुआ? derives value derives value from something else. ठीक है, नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट स्वैप्स. स्वैप्स में क्या रहेगा? So swaps are derivative instruments again,
which are used to exchange financial assets, thus reducing the risk. ठीक है, तो ये आपको again you need to remember the definition या meaning. Examples of swaps are currency swaps, then we have credit default swaps, interest swaps. ठीक है, all of these are examples of the same. ठीक है, next we will be looking at participatory notes. Participatory notes में क्या रहेगा, फंक्शन क्या है, they allow foreign investment in Indian markets without direct SEBI registration. ठीक है, and the FIIs or FPIs issue participatory notes to foreign investors based on, and these are based on underlying Indian shares and bonds. ठीक है, रिस्क क्या है, कोई इन्वेस्टर anonymity or lack of loss of tax revenue for the Indian government. ठीक है, so this is not very important. You just need to know this for your own understanding. वैसे आपको क्या पता होना चाहिए कि participatory notes क्या है. They'll allow foreign investment in Indian markets. Do not confuse this with promissory notes. ठीक है, this is different from promissory notes. Promissory notes are basically a credit instrument. ठीक है, तो इन दोनों को do not confuse it. पार्टिसिपेटरी नोट मतलब पार्टिसिपेट करने को अलाउ करते हैं. सो दे अलाउ द फॉरेन इन्वेस्टर्स टू पार्टिसिपेट इन इंडिया, इंडियन स्टॉक मार्केट. ठीक है, एंड विदाउट डायरेक्ट सेबी रजिस्ट्रेशन. ठीक है, सो द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, दे इशू दीज पार्टिसिपेटरी नोट्स टू फॉरेन इन्वेस्टर्स. सो दीज आर बेस्ड ऑन अंडरलाइंग इंडियन शेयर्स एंड बॉन्ड्स. ठीक है, नेक्स्ट है comparisons. So we'll be comparing participatory notes with the depository receipts जो हमने पहले पढ़ा था, American depository receipt and global depository receipt. So we'll be comparing those two. So first of all, जो participatory notes हैं they are for foreign investors in Indian markets. ठीक है, नेक्स्ट जो भारत डिपॉजिटरी receipts हैं they are for foreign they will basically aid foreign company to sell shares in to Indian investors. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इन्वेस्टर फॉरेनर जो है वो आके इंडियन शेयर मार्केट में ही इज इन्वेस्टिंग पार्टिसिपेटरी नोट में. वेराज अगर कोई फॉरेन कंपनी को इंडियन इन्वेस्टर्स से पैसे चाहिए, so what can it do? Bharat depository receipt will be issued to it, under which its shares will be listed on India's stock exchange, और वहाँ से we can buy those. Indians can invest in that company. ठीक है, नेक्स्ट है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट. तो इसमें क्या होगा, नॉन अमेरिकन कंपनी कैन सेल शेयर्स टू अमेरिकन इन्वेस्टर्स और टू सम अदर कंट्रीज इन्वेस्टर्स. ठीक है, देन वी हैव मसाला और पैंडा और कैंगरू बॉन्ड्स. तो इसमें क्या होगा, द फॉरेन कंपनी कैन बोरो मनी इन अ स्पेसिफिक कंट्रीज करेंसी. ठीक है, सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दी अबव थ्री बिकॉज यहाँ पे बॉन्ड्स की बात हो रही है, whereas the others are regarding depository receipts etc. ठीक है, so all of these are quite important, है ना. नेक्स्ट we'll be looking at credit default swap. so credit default swap में क्या होगा, it will protect the lenders from borrower default. So if a borrower defaults in certain cases, then the credit default swap का जो provision है, it will help them from borrower का जो default हुआ है उससे. ठीक है, नेक्स्ट है वही लेंडर पेज प्रीमियम टू बाय CDS. CDS stands for credit default swap, and if the borrower does not repay the bond, then the insurer, that is the CDS seller, will pay for the loss. ठीक है, so it is effectively a kind of insurance. ऐसे लर्न करने के लिए काइंड ऑफ इंश्योरेंस है ये. ठीक है, तो अगर एक लेंडर है और एक बोरोअर है, एंड द बोरोअर इज अनेबल टू पे बैक द मनी, and if the lender has bought a credit default swap, then he'll be getting, वो insured amount रहेगा उसका, and he'll be getting back that money from the insurer. ठीक है,
So that is all that is there in this topic. Next we'll be looking at currency swap. Currency swap में क्या होगा? It refers to an agreement between central banks for currency exchanges during crisis situations. ठीक है? तो दिस इज़ अ फेयरली सिंपल डेफिनेशन कि अगर कोई क्राइसिस सिचुएशन आ गई जैसे वॉर या ये सब कुछ आ गया, then the two central banks have agreed to exchange currency during such a crisis. ठीक है? Next we have tax on investment or financial assets. So general क्या है? Investments are subject to various taxes as you might be knowing, है ना? Then there are various tax reliefs which are available as well. ठीक है? Tax relief मतलब कि you do not have to pay tax on certain things. ठीक है? उसको tax relief बोलेंगे. Relief मतलब कि नहीं पे नहीं करना पड़ रहा है कहीं पे. ठीक है? So certain investments receive tax benefits. तो एग्जाम्पल्स या कैटेगरीज क्या हैं? जो बैंक एफडी होते हैं 5 years के, दे आर जनरली टैक्स सेविंग. ठीक है? देन स्मॉल सेविंग स्कीम्स, ऑल ऑफ देम यू डू नॉट हैव टू पे टैक्स ऑन देम. ठीक है? देन पेंशन, इंश्योरेंस, these are also they do not have any tax levied on them. शेयर मार्केट में वहाँ पे भी हैं. देन टैक्स फ्री बॉन्ड्स भी होते हैं. ठीक है? देन देर आर सर्टन डोनेशंस एंड गिफ्ट सिटी के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इवन दोज आर टैक्स फ्री. ठीक है? सो यू नीड टू रिमेंबर दिस लिस्ट. जस्ट रीड इट अ couple of times, it will help you um, recognize an option if in case it comes in the examination. ठीक है? तो बैंक का जो एफ डी है दैट हैज़ टैक्स बेनिफिट्स. देन स्मॉल सेविंग स्कीम्स, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ऑल ऑफ दीज जैसे प्रोविडेंट फंड ये सब है ना, दीज हैव टैक्स बेनिफिट्स. देन पेंशन, इंश्योरेंस, एवरीथिंग हैज़ टैक्स बेनिफिट्स. शेयर मार्केट हैज़ टैक्स बेनिफिट्स. देन टैक्स फ्री बॉन्ड्स होते हैं स्पेसिफिक गवर्नमेंट एंटिटीज़ के, वो भी as the name suggests they have no tax levied on them. Then we have donations and gift city investments. Now no tax relief किस किस में होगा? Any investment which has not been listed above, all of them are generally taxable. ठीक है? एग्जाम्पल्स क्या है? बैंक जो सेविंग्स बैंक अकाउंट होता है उसका जो इंटरेस्ट है दैट इज़ टैक्सेबल. सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स आर टैक्सेबल. म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, एवरीथिंग इज टैक्सेबल. म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, infrastructure investment trusts, everything else. Cryptocurrency is taxable. Then property, precious metals, diamonds, ठीक है, everything like that will be taxable. सो इसमें लेट मी जस्ट चेक वन थिंग. ठीक है, हाँ, ई एल एस एस का यहाँ पे फुल फॉर्म लिख लो आप लोग. दिस रेफर्स टू इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम. इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम. दिस इज़ द वन विच इज़ नॉट टैक्सेबल व्हेन इट कम्स टू द शेयर मार्केट. ठीक है? बाकी सारे जो शेयर्स ये सारे चीज़ें होते हैं दे आर टैक्सेबल. ठीक है? सो डू नॉट कंफ्यूज इट विद दिस. तो क्या क्या नहीं है फिर से एक बार देख लेते हैं. बैंक एफ डीज नहीं है टैक्सेबल. स्मॉल सेविंग्स और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स नहीं है. देन पेंशन और इंश्योरेंस में भी टैक्स बेनिफिट मिलता है. शेयर मार्केट में जो ई एल एस एस होता है दैट इज़ इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, दैट हैज़ टैक्स बेनिफिट्स, टैक्स फ्री बॉन्ड्स में होते हैं. देन डोनेशंस आर टैक्स फ्री एंड गिफ्ट सिटी के इन्वेस्टमेंट्स आर ऑल्सो टैक्स फ्री. नाउ वी विल बी लुकिंग एट कमोडिटी मार्केट, एफ एम सी एंड सेबी का जो मर्जर हुआ था उस पर. कमोडिटी मार्केट में क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, कमोडिटीज आर ट्रेडेड हियर. ठीक है? कमोडिटी मतलब थिंग्स, गुड्स. सो इट ट्रेड्स बल्क गुड्स लाइक फूड, ग्रेन्स, मेटल्स, एनर्जी एट्सेट्रा. है ना? कमोडिटी फ्यूचर्स क्या रहेगा? इट विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर फ्यूचर डिलीवरी. ठीक है? सो दीज आर द टू थिंग्स प्रेजेंट. फिर एफ एम सी क्या रहता है? फॉरवर्ड मार्केट कमीशन. इफ़ यू माइट बी नोइंग, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन को एफ एम सी बोलते हैं. Former regulator merged with SEBI in 2015 due to the scams. So FMC पहले होता था Forward Market Commission and it was a regulator. However, it was merged with SEBI in
2015. सो दिस इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट गोल्ड एक्सचेंजेस, ठीक है। सो अगेन दिस इज़ अ काइंड ऑफ कमोडिटी मार्केट, गोल्ड एक्सचेंज है ना। इसमें क्या होगा, इट इज़ अ स्पेशलाइज कमोडिटी मार्केट फॉर गोल्ड, ठीक है। सेबी विल बी द रेगुलेटर एंड WDRA, warehouse development and regulatory authority, will be handling the warehousing, assaying and logistics, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। एक तो सेबी इज़ दी ओवरऑल रेगुलेटर है ना, और उसके ऊपर से WDRA, दैट इज, आई जस्ट राइट द फुल फॉर्म डाउन हियर, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। So this authority will be responsible for warehousing, handling, ये सब, ठीक है। um, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स। सो ये क्या है, गोल्ड डिपॉजिटेड इन WDRA ऑथराइज्ड वेयर हाउसेस, ठीक है, उनके लिए यू विल गेट अ रिसीट, ठीक है। EGR, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट, इज इशूड एंड इट इज ट्रेडेड ऑन सेबी रेगुलेटेड एक्सचेंजेस एज वेल, ठीक है। तो इफ़ आई हैव गोल्ड केप्ट इन अ वेयर हाउस, WDRA में मेरे पास गोल्ड पड़ा हुआ है मेरा, देन आई विल गेट अ रिसीट फॉर दैट गोल्ड, ठीक है, एंड आई कैन ट्रेड दैट रिसीट ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस या सेबी रेगुलेटेड एक्सचेंजेस, नॉट द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। बेनिफिट क्या है, वो अश्योर्ड क्वालिटी, रिड्यूस्ड टैक्स इवेजन, ये सब। नेक्स्ट देख लेते हैं इंडियाज फर्स्ट बुलियन एक्सचेंज। So India International Bullion Exchange at Gift City, Gujarat is considered to be India's first bullion exchange. It trades physical gold and silver 24/7, ठीक है। तो नाम क्या है, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, गिफ्ट सिटी गुजरात में है। वही फिजिकल गोल्ड और सिल्वर ट्रेड करने के लिए है ये प्राइमरीली, है ना। और बुलियन का मीनिंग क्या होता है, बुलियन मीन्स हाई प्योरिटी, जैसे फॉर योर इंफॉर्मेशन, bullion refers to very high purity physical gold, silver, platinum, palladium etc, ठीक है। ठीक है, सो वेरी हाई प्योरिटी फिजिकल गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम एक्सेट्रा, दैट इज नोन एज बुलियन। एंड इंडिया का जो फर्स्ट बुलियन एक्सचेंज है, दैट इज इन गिफ्ट सिटी गुजरात, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट बुलियन एक्सचेंज एंड उसका नाम क्या है, IIBX, दैट इज इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग एट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, FSDC, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, फंक्शंस क्या है, सुपरविजन, कोऑर्डिनेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंक्लूजन, ठीक है। चेयरमैन कौन रहेगा इसका, फाइनेंस मिनिस्टर इटसेल्फ विल बी द चेयरमैन हियर एज वेल। मेंबर्स कौन है, रेगुलेटरी हेड्स ऑफ RBI, SBI, सेबी etc, एंड गवर्नमेंट सेक्रेटरीज अलॉन्ग विद द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है। तो क्या नाम क्या, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। सो इट इज़ एम्ड एट इम्प्रूविंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री ओवरऑल, ठीक है। तो वही फाइनेंस मिनिस्टर इज़ द वन हु इज़ हेडिंग दिस, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, और बाकी काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं इसमें, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेंबर दैट द चेयरमैन हियर इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर। Next है bodies with similar sounding names. So first of all we have Financial Stability Board and Financial Action Task Force
एंड देन लास्ट क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशंस। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड क्या रहेगा, इट इज़ अ G20 का इनिशिएटिव, और वो किस काम के लिए है, इट इज़ फॉर ग्लोबल फाइनेंशियल मॉनिटरिंग। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट द फैक्ट दैट FSB इज अ G20 इनिशिएटिव। ठीक है, एंड इंडिया ऑल्सो हैज़ रिप्रेजेंटेशन इन इट। सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कि G20 का इनिशिएटिव है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। नेक्स्ट, इसको लर्न कैसे करेंगे, स्टेबिलिटी है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो जो G20 है, इट कंसिस्ट्स ऑफ वेल टू डू countries। ठीक है, सो दे आर स्टेबल कंट्रीज, रिलेटिवली स्टेबल कंट्रीज। ठीक है, वैसे करके यू कैन रिमेंबर दिस। नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग एट FATF। FATF इज अ G7 इनिशिएटिव। ठीक है, इट इज फॉर combating money laundering, terror finance, and India is also a member of FATF, and it is an initiative of G7। ठीक है, तो G7 को, इसको कैसे लर्न करेंगे, FATF। तो यहाँ पे ये उल्टा 7, इसको दिस इज सिमिलर टू 7। ठीक है, तो G7 उससे लिंक हो जाएगा, G7। ठीक है, देन है IOSCO। IOSCO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशंस। तो इसमें क्या होगा, इट इज़ एन इंटरनेशनल बॉडी ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेटर्स, एंड सेबी इज ऑल्सो अ मेंबर। ठीक है, सो द नेम अगेन हियर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशंस। ठीक है, तो सिक्योरिटी जो भी सारे रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं सिक्योरिटीज़ के रेगुलेटर्स हैं, दे विल बी अ मेंबर ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स। सो इट इज़ अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेबी। ठीक है, इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फॉर फाइनेंशियल मार्केट प्रोफेशनल्स। बस इतना ही है इसमें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स। तो सिक्योरिटीज से रिलेटेड है, सो सेबी विल बी द वन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कंपनी के टाइप्स, है ना। सो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज बेस्ड अपॉन देयर इनकॉर्पोरेशन। तो सबसे पहले वी हैव चार्टर कंपनीज, देन स्टैट्यूटरी कंपनीज, एंड देन वी ऑल्सो हैव रजिस्टर्ड कंपनीज। ठीक है, चार्टर कंपनीज आर दोज विच हैव बीन सेट अप बाय अ रॉयल चार्टर। मतलब कि वो यूके ब्रिटेन के टाइम का कुछ चीज़ रहेगा, दे विल बी अ चार्टर कंपनी। सो एग्जाम्पल, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ चार्टर कंपनी, इट वॉज सेट अप बाय अ रॉयल चार्टर। ठीक है, then statutory companies are set up by parliamentary acts, and registered companies are set up under the Companies Act। ठीक है, ये पार्लियामेंट्री एक्ट और कंपनीज एक्ट, सो दिस यू नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट है कंपनी टाइप्स बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ मेंबर्स। सो दिस इज अ सिंपल टॉपिक। सो सबसे पहले क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, इसमें देर आर अप फ्रॉम 2 to 200 मेंबर्स आर देयर। ठीक है, एंड इट कैन नॉट invite public investment। Then we have public limited companies where you have minimum 7 members and maximum though it is unlimited। ठीक है, सो हाउ डू यू रिमेंबर दिस, पब्लिक में कितने 7 लोग होने चाहिए, 7-8 लोग आएंगे तभी बनेगा ना पब्लिक। मतलब 2 लोग कहीं पे खड़े होंगे, सो दैट वोंट बी कॉल्ड अ पब्लिक। मतलब ठीक है, वैसे करके लर्न कर लो कि 7 to 8 पीपल विल बी कॉल्ड पब्लिक। और यहाँ पे 200 कैसे लर्न होगा, वही 2 से 200। ठीक है, 2 to 200 विल बी प्राइवेट। ठीक है, नेक्स्ट है हाँ, इट कैन इनवाइट पब्लिक इन्वेस्टमेंट अनलाइक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। दे कैन आइदर बी लिस्टेड और अनलिस्टेड, सो डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे आर listed on the stock exchange or not, they are known as listed or unlisted companies। ठीक है, and there are specific rules for directors। नेक्स्ट वी हैव कंपनी टाइप्स बेस्ड अपॉन ओनरशिप। सो सबसे पहले वी हैव गवर्नमेंट, और देखो ओनरशिप के बेसिस पे है, तो सबसे पहले कैसा आ जाएगा, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर कंपनीज, है ना, वेयर गवर्नमेंट विल बी ओनिंग नियरली 51% ऑफ द शेयर्स और मोर। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव प्राइवेट सेक्टर companies wherein the private parties will be owning more than 51% of the shares। ठीक है,
देन वी हैव होल्डिंग कंपनीज। होल्डिंग कंपनी क्या में क्या होता है, इट विल बी ओनिंग मेजॉरिटी शेयर्स इन अनदर कंपनी, है ना। देन वी ऑल्सो हैव सब्सिडरी कंपनीज विच आर कंट्रोल्ड बाय अ होल्डिंग कंपनी, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, होल्डिंग कंपनी में क्या होगा, उसका काम है होल्ड करना, ठीक है। तो इट विल बी होल्डिंग मेजॉरिटी शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। और सब्सिडरी कंपनी क्या है, कोई होल्डिंग कंपनी को जिसने पकड़ा हुआ है वो रहेगा सब्सिडरी कंपनी। तो ये है होल्डिंग कंपनी, ये छोटू सी रहेगी सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। इसको पकड़ा हुआ है इसने, है ना। कैसे पकड़ा है, बाय हैविंग ओनिंग इट्स मेजॉरिटी ऑफ इट्स शेयर्स, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज आर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं कंपनी टाइप्स मिसलेनियस क्लासिफिकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव वन पर्सन कंपनीज। तो इसमें क्या रहेगा, वन पर्सन मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहेगा, ओनली वन मेंबर इट विल बी हैविंग, ठीक है। देखो वन, पहले हमने वी हैड रेड कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कितने होता है, मिनिमम मेंबर्स 2 एंड मैक्सिमम कैन बी 200, बट इन द केस ऑफ वन पर्सन कंपनी देयर इज ओनली अ सिंगल मेंबर, ठीक है। देन नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होता है वेयर इन द प्रॉफिट्स आर री इन्वेस्टेड इन टू द कंपनी बिजनेस इटसेल्फ। ऐसा कुछ नहीं है कि डिविडेंड पे कर रहे हैं जो भी शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स को, ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। देन वी हैव डोमेंट कंपनीज। डोमेंट कंपनीज में क्या होगा, दे आर प्राइमरली मेड फॉर फ्यूचर बिजनेसेस या आईपी स्टोरेज करने के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को स्टोर करने के लिए, या दे आर इनएक्टिव कंपनीज, ठीक है। फिर है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनीज, ठीक है। तो इसमें देर आर मिनिमम 2 पार्टनर्स एंड देर इज इंडिविजुअल लायबिलिटी प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि एक पर्सन का कुछ प्रॉब्लम हो गया तो दूसरे पर्सन पे लायबिलिटी आ जाएगी, तो वैसा सिस्टम नहीं रहेगा। देयर विल बी लिमिटेड लायबिलिटी इन दिस केस। वेयर एज इन पार्टनरशिप फर्म्स क्या होता है, देयर इज अ जॉइंट लायबिलिटी क्लॉज, ठीक है। सो दिस इज सेफर व्हेन इट कम्स टू डूइंग बिजनेस, ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो एंड यू आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द पार्टनर कम्प्लीटली, ठीक है। सो जैसे बाजीराम एंड रवि करके एक इंस्टीट्यूट है ना, फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट, इट इज़ अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वील लुक एट statutory bodies in Ministry of Corporate Affairs. So first of all, the main statutory body which we have in Ministry of Affairs is the Competition Commission of India. ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या पर्पस क्या है, एज द नेम सजेस्ट, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया टू प्रमोट कंपटीशन, प्रिवेंट मोनोपोलीज एंड कार्टल्स, ठीक है। सो स्टैचूट इट इज़ अ स्टैचूटरी बॉडी अंडर द कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002। सो टू इसको कैसे लर्न करेंगे, ईयर को टू, अब जब हम 2 years के थे तब से वी आर इन टू कॉम्पिटिशन, तो ऐसे करके कुछ भी लर्न कर लो, ठीक है। 2002 मतलब टू टू इयर्स की एज से ही वी आर मेड टू कम्पीट इन आर स्टडीज़ और ये सारी चीज़ों में, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन क्या है, इट इम्पोजेस पेनल्टीज, इन्वेस्टिगेट्स alleged cartelization etc, एंड इसके अपील आर हर्ड बाय द नेशनल कंपनी लॉ appellate ट्रिब्यूनल, ठीक है। NCLAT होता है ना, दैट इज़ द वन विच हियर्स द अपील्स, ठीक है। So this is important. Then Insolvency and Bankruptcy Board of India. So it is again a statutory body under the Ministry of Corporate Affairs, and it deals with insolvency and bankruptcy. We have read a lot about this in a previous video, ठीक है, पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में। Then we are looking at bodies under Companies Act 2013। कंपनीज एक्ट 2013 में कौन से बॉडीज आते हैं, दोज वी आर लुकिंग एट दोज। we first of all we have National Company Law Tribunal, then National Financial Reporting Authority, फिर Investor Education and Protection Fund, Serious Fraud Investigation Office, ठीक है। तो इन सब में the names are self explanatory, National Company Law Tribunal, National Financial Reporting Authority, है ना, Investor Education and Protection Fund, फिर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ठीक है। तो क्या क्या रहेगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल है मतलब एडजुडिकेशन बॉडी है,
It will hear cases related to a Companies Act, mergers, insolvency, etc. अपील किसको जाता है? NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल को जाएगा. देन वी हैव नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी. इसमें क्या करेगा? एज द नेम सजेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए है. सो इट विल बी सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर ऑडिटर्स एंड इन्वेस्टिगेटिंग मैल प्रैक्टिसेस. ठीक है. इसका अपील किसको जाएगा? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एपेलेट अथॉरिटी. ठीक है. देन वी हैव इन्वेस्टर एजुकेशन एंड protection fund. It uses unclaimed funds from SEBI etc. for financial literacy. ठीक है. तो जिसमें काफ़ी सारे अनक्लेम्ड फंड्स रह जाते हैं पूरे स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक मार्केट में. दोज फंड्स आर इन्वेस्टेड इनटू द IEPF and it is used primarily for improving financial literacy in our country. ठीक है. नेक्स्ट है इसका अपील विल बी फॉर टूवर्ड्स रेगुलर कोर्ट्स बिकॉज ये एज सच कोई एडजुडिकेटिव बॉडी है नहीं, है ना. सो देयर इज़ नो अपील सिस्टम एज सच हियर. देन अगर कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन गो टू द रेगुलर कोर्ट. Then Serious Fraud Investigation Office. So as the name suggests, it is an investigative body for serious frauds. So it will be investigating financial frauds and has powers of search and arrest. So this is very important that search or arrest के powers हैं इसके पास. ठीक है. And again appeals will be going to the regular courts. ठीक है. नेक्स्ट वी लुक एट अनक्लेम्ड शेयर्स एंड डिविडेंड्स ऑफ IEPF जो अभी हमने पढ़ा था. इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड उसके अनक्लेम्ड, यहाँ पे आई जस्ट राइट इट डाउन. इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड. ठीक है. तो इसकी जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं वो कहाँ पे जा रहे हैं? अनक्लेम्ड शेयर्स एंड डिविडेंड्स of the share market, they will be going to IEPF and they will be used for financial literacy. ठीक है. तो वही दिया है यहाँ पे. IEPF handles unclaimed shares, bonds, dividends etc. and it uses these funds for investor awareness. Now budget 2023 had planned an IT portal to reclaim the unclaimed shares, so that is not as important. बस ये आपको पता होना चाहिए. एंड वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस अर्लियर ऑल्सो, सो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट है, हाँ ये कर लेना. नेक्स्ट कंपनीज एक्ट का सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर क्या होता है? ठीक है. तो देखो क्या है, बजट 2023 में सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर वॉज प्रपोज फॉर फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ कंपनी फॉर्म्स. ठीक है. तो सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर फॉर कंपनीज and it is aimed at improving ease of doing business. So you just need to know कि सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर किसके लिए लाए हैं? कंपनीज एक्ट में फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ कंपनी फॉर्म्स. ठीक है. नेक्स्ट है टेक ओवर रिलेटेड टर्म्स. So there are two types of takeovers which can happen. There is a friendly takeover and then there will be a hostile takeover. ठीक है. तो मतलब टेक ओवर का मतलब क्या है कि समवन बाइज अ कंपनी, दैट इज़ नोन एज अ टेक ओवर. ठीक है. तो फ्रेंडली टेक ओवर में क्या होगा कि जो बोर्ड है कंपनी का, दे अप्रूव फॉर द कंपनी सेल कि हाँ हमारी कंपनी को समवन एल्स शुड बाय, दे अप्रूव इट. दैट इज़ नोन एज अ फ्रेंडली टेक ओवर. वेयर एज इन द केस ऑफ होस्टाइल टेक ओवर क्या होगा? द बोर्ड विल नॉट बी कंसेंटिंग टू देयर सेल. तो आपने देखा होगा जो ट्विटर का जो सेल होने वाला था ना टू इलॉन मस्क, there were various to Elon Musk had bought Twitter, है ना. तो काफ़ी सारे न्यूज़ आइटम्स थे कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ hostile takeover which is taking place because the board was not willing to secede to Elon Musk. ठीक है. तो तब ये हुआ था. देन लीवरेज बाय आउट, LBO का मीनिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू एक्वायरिंग मेजॉरिटी शेयर्स यूजिंग बोरोड मनी. ठीक है. लीवरेज यूज़ करके बाय आउट करना मतलब एडवांटेज यूज़ करके कुछ भी. लीवरेज रेफर्स टू एन एडवांटेज, है ना. कोई भी एडवांटेज यूज़ करके यू आर बाइंग समथिंग. सो एडवांटेज क्या है इस केस में? एडवांटेज विल बी द लोन. ठीक है. सो एक्वायरिंग मेजॉरिटी शेयर्स यूजिंग बोरोड मनी एंड एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज हाउ इलॉन मस्क हैड बॉट वही ट्विटर.
x. ठीक है? So that is all for this topic. Thank you. Kindly like, share, and subscribe to my channel if you found this video helpful. You can also follow my Telegram channel for any updates. Thank you.